Welcome, everyone. This is Numair Shahzada here from the NIC, and we're live with another session of Gurus at NIC, which is where we host some of the most influential people in Pakistan who are just in their own right doing something special for the country. And I have yet to meet someone who is doing things as special as Umar Hussain here. Umar Hussain is a friend to everyone. What I know about him, and I'm so excited to meet him today, and for all of you to meet him. We're going to get to know about his business, Sweet Tooth, which is nothing more than his platform from where he enacts goodness into the world and for people. He uses food as a means to do what he loves, and his love for food goes way back. We're going to ask him some questions about that. And, Umar is a typical entrepreneur story in the sense that he dropped out of Lahore School of Economics and then he made a lot of t-shirts. He had a clothing brand by the name of Revolt, and I believe he even sold to Walmart. We'll ask him some questions about that. And things that people just aren't doing. Umar is hiring transgender community. He's hiring differently abled people, and I'm so excited to ask him questions about that. Get to know more about how other entrepreneurs can do that, and the benefits that come around cultivating such good karma. Umar's going to tell us a little bit about, I think this is a very exciting learning for all the entrepreneurs watching right now because, if you're going for money, I don't think you're going to get there. But if you're going for a cause, there's more soul behind that. And Umar's going to tell us more about that. So Umar, welcome to the show. So happy to have you. So happy to meet you. I want you to spend more time talking than me. Um, let's dig right in, Umar. Tell us about yourself and start from the beginning, your childhood and where your love for foods began. Assalamu alaikum, Numair. First of all, happy Ramadan to everyone. The first roza, and my mom Happy is like, Ramzan. हाँ कि पहला रोजा है और तुम जाके फिर बैठ गए हो क्या करने लगे हो so it was like last week we were doing live sessions throughout Ramzan because we were making those PPE suits and everything. So I used to detox and I used to do my catharsis over the live session. Okay, yaar, shit, this is happening, this is going down, this is what is happening. So, Baral, the mom's like, "Are you up to something again?" And I'm like, "No, no, 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 no. Keep it cool, ma." So, thank you so much. This was uh, a very warm welcome from you, and you just gave them a little brief about how I've done things. So, khair, starting it off, entrepreneurs के लिए और सबके लिए मतलब the journey that I've had, I always want to share क्योंकि if this brings out a positive change in people in the way they think, so I would consider my job here is done. That is the reason I'll be here and doing the live session. So the journey starts. मैं कहता हूँ कि मेरी जितनी भी accomplishments हैं अपनी आज तक जितना भी I was able to do, the way you said, I'm a friend to everyone. The biggest secret to that thing was my mother telling me, if you shake hand with somebody, make you earn 10 good deeds. So I was in grade 1 and I was the kid who used to enter school shaking hands with my guard, Aya, uh, दूसरे जितने भी बच्चे, nobody could cross my path. I would stop them and shake hand. And I used to think if shaking hand is 10 good deeds, then hugging somebody would be like 20 good deeds. So I was the guy I was the kid who used to enter school and he was just hugging every single human being जो सामने से गुजर रहा होता था. मुझे याद है मेरी असेंबली के अंदर आई यूज्ड टू शेक हैंड्स अपनी पूरी लाइन के साथ, अपनी साथ वाली पूरी लाइन के साथ, फिर अपनी लेफ्ट वाली पूरी लाइन के साथ. और टीचर्स वगैरह कहती थी तो पागल है ना, हर टीचर मेरी दोस्त थी, हर बंदा मेरा दोस्त. अब अच्छा, व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज एट द एंड ऑफ द डे काउंटिंग माय गुड डीड्स. मैं काउंट कर रहा होता था कि मैंने आज जी 10,000 नेकियां कमाई है, मैंने आज 1000 नेकियां कमाई. सो टू मी इट वाज कि मेरी आज कितनी नेकियां हो गई है ना. लेकिन लोगों को तो नहीं पता था कि मैं नेकियां गिन रहा हूँ. आई वाज एक्चुअली कनेक्टिंग विद पीपल. ठीक है.
अब व्हाट दिस मुझे अभी जो मेरी लड़की क्लास फेलोज थी वो अब बताती हैं कि जब छुट्टी टाइम होती थी ना, दे यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम मी, क्योंकि उनके भाई और उनके अब्बा वगैरह पिक करने आए होते थे और मुझे आदत थी हाथ मिलाने की, तो वो मेरे से दूर दूर रहते थे। आई नेवर न्यू कि क्या कहते हैं, व्हाट एम आई एक्चुअली डूइंग, सो आई वाज एक्चुअली नेटवर्किंग विद पीपल। खैर, यू अभी तुमने कहा कि कब पता चला कि फूड वाज माय थिंग, आई नेवर न्यू दैट। इन ग्रेड 3 आई साइंड अप फॉर कुकरी क्लब। हमारे ना स्कूल के अंदर देयर वाज दिस जीरो पीरियड, और उसके अंदर आप डिफरेंट क्लब्स ज्वाइन करते हैं। तो आई ज्वाइन कुकरी क्लब, और उसकी मैंने एक क्लास ली और टीचर ने कहा कि आपने ना बेकिंग ग्लव्स लेके आने। So I came back home and I asked my mom के mom, I need a baking glove, and she was like, हमारी देसी माएँ हैं भाई, कढ़ाई, बिरयानी, उन्होंने ओवन हमारे घरों में ना डेकोरेशन पीस के लिए लगता है, इट्स नॉट देयर टू बी यूज्ड, इट्स देयर। जो बेकिंग ओवन है वो हम लोग सिर्फ डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, कभी केक नहीं बनाएंगे हम लोग, केक मार्केट से लेके आएंगे हम सारे, तो मतलब so it was very strange for my mom, why do you need a baking glove? And I was like, mom, I signed up for cookery club. And she was like, what is cookery club? And I told her, okay, it's about cooking. And she's like, what? She came to my school the next day, and there were like 25 girls and I was the only boy, and she made me change it into martial arts. तो मैंने Oh cookery God. क्लास ली थी, क्लास 3। और मैंने वो ज्वाइन इसलिए किया था कि उससे क्या कहते हैं, मुझे खाने का शौक है, तो वो ठीक। मेरा उस पूरा होगा, and I'll be able to eat different stuff every single day. Hmm. This is where it all began. I never knew that is my thing. Khair, since I was networking in school, so I was friends with almost everybody. By the time I was in my O levels, I was going to different academies and I was making more friends. So पहले सिर्फ स्कूल वाले मेरे दोस्त थे, फिर मैं अकेडमी जाना शुरू हुआ, उधर के लोग मेरे दोस्त बनना शुरू हो गए। फिर अगर बीके नाउ से था तो एलजीएस के भी बच्चे दोस्त हैं, एचएसएन के भी बच्चे दोस्त हैं, हर जगह का बच्चा, लकास के भी दोस्त हैं। अब मेरा सर्कल बड़ा होता जा रहा है। आई वॉज द सॉर्ट हु हैड अ ह्यूज सर्कल। मुझे बहरहाल तब कुछ म्यूजिशियंस मेरे अच्छे दोस्त बने। ये वो वाला टाइम था जब नया नया जल, आतिफ और जल वर ठीक। टुगेदर, and they launched आदत, और वो आदत revolutionized the music, No doubt. ठीक है। और अब मेरे मेरे से वो सारे 10 एक साल बड़े थे, लेकिन वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, क्योंकि आई Hmm. वाज मेकिंग फ्रेंड्स irrespective of their age, irrespective of their profession, irrespective of their cycle circle। मतलब एवरीबॉडी वाज माय फ्रेंड, क्योंकि लोगों के होते हैं ना कि म्यूजिशियंस के म्यूजिशियन दोस्त हैं, दूसरों के दूसरे दोस्त हैं, किसी के दोस्त बड़े स्पॉइल्ड दोस्त हैं, किसी के स्पॉइल्ड सारे पढ़े लिखे बच्चे। मेरे सारे दोस्त हैं, मेरे पढ़े लिखे दोस्त, मेरे थीटे Amazing. बच्चे भी दोस्त थे, मेरे स्पॉइल्ड ब्रैट्स भी दोस्त थे, मेरे म्यूजिशियंस भी दोस्त थे। एवरीबॉडी वाज माय फ्रेंड एंड आई हैड अ ह्यूज नेटवर्क। तो तब अब हुआ ये कि आई वाज एक्सपोज्ड टू म्यूजिक, और म्यूजिक, आई हैड दिस आर्टसी थिंग इन मी। तो जब मैंने वो देखा तो आई स्टार्टेड डूइंग कॉन्सर्ट्स। तो बड़ा मजे का टाइम था, ईपी नूरी कॉल अंडरग्राउंड था, और हम लोग ईपी नूरी कॉल जल कॉन्सर्ट करा देते थे। जबरदस्त। ऐसा होता है, आई हैड अ ह्यूज नेटवर्क, और आई थॉट कि यार चलो, इट वाज गिविंग मी अ बज एंड आई वांटेड कि लेट्स डू म्यूजिक। और म्यूजिक एक रेवोल्यूशनाइज हो रहा था, ये ऑर्किड का टाइम, ठीक है। Hmm. तो उस टाइम के ऊपर ना मैं एक क्लोथिंग ब्रांड, आई वोंट नेम इट, सो आई वेंट देयर फॉर अ स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप के लिए मैं वहां पे गया, तो अब वो जो उनका डायरेक्टर था सिटिंग, और उसने ना मुझे काफी काफी बेइज्जती की उसने मेरी। मैंने एक प्रपोजल बनाया हुआ था जिसके अंदर फ्लेक्स की प्राइस जो सी है ना, वो शायद ₹5 महंगी थी, क्योंकि हम कॉर्पोरेट नहीं है, वो कॉर्पोरेट थे, तो मुझे शायद ₹5 ज्यादा रेट मिला हुआ था। तो मैंने एक उनको दी, उसने मुझे कहा कि भाई आई थिंक द प्राइस इज हाई, और सारा ना यार अच्छा। तो मुझे तो नहीं था पता, उन्होंने कहा कि वी कैन डू इट इन अ चीपर वे, और ये वो। तब उधर बैठे मेरे ज़हन में आया कि यार दे नीड मी टू डू इट, दे डोंट हैव द क्राउड, दे डोंट हैव द एक्सेस। तब ये पीआर वाला मजाक नहीं था, तब सोशल How मीडिया old were you around this time? कितनी उम्र दिस थी आपकी? 2004, आई वाज Oh, मेरे ख्याल से 14 साल का होगा,
13-14। 14 साल। सो ये हाँ। बिजनेस थिंकिंग, ये एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग शुरू कब हुआ, कहाँ से हुआ? आई हर्ड दैट टॉफीज हैव समथिंग टू डू हाँ विद द हाँ 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 स्टोरी। हाँ, ये वो मैं भूल गया बीच में बताना। तो दिस वाज इन, ये भी बहुत छोटे होते स्कूल की बात है, तो मे बी इन grade 1 grade 2 की बात है। आई वाज हमारे ना कैंटीन से एक टॉफीज मिलती थी जो मार्केट के अंदर 1 रुपए की 4 थी और ये 1 रुपए की 2 देता था, ठीक है। तो मेरे जहन में ये नहीं था, आई डिडंट नो कि ही इज टेकिंग मोर प्रॉफिट, आई थॉट कि ही इज बाइंग इट एट अ डिफरेंट प्राइस। आई डिडंट न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, आई डिडंट न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कि वो ला के हमें महंगी बेच रहा है, आई डिडंट न्यू कि ही कैन डू दैट, ठीक है। तो व्हाट आई डिड, मैंने 10 रुपए की टॉफियां खरीदी अपने घर के पास वाले स्टोर से, और वो मैंने जाके 10 रुपए की 40 टॉफियां ना उसको 20 रुपए की बेच आया। उसे मैंने कहा कि ये मैंने आपसे खरीदी थी, हाँ। ये मतलब ये चीजें ये आप रखें। उसने आउट ऑफ क्यूटनेस उसने वो टॉफियां खरीद ली और उसने मुझे 10 रुपए की जगह 20 रुपए दे दिए वापस। और मेरे वो 10-20 हो गए थे, और मेरे लिए द शेख चिली थिंग, आई थॉट कि आई हैव माई लाइफ फिगर्ड आउट and I will not ask my family for a single rupee ever. So I'll just multiply every day. ठीक है। मैं तो इतना खुश, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं अगले दिन घर, मतलब उसी दिन घर आके मैं पूरा एक्साइटेड, कपड़े चेंज करके मैं मार्केट गया हूँ पैदल, ठीक है, ड्राइवर के साथ पैदल चल के मैं गया हूँ, और वहां पे जाके मैंने 10 रुपए की, वो जो पहले मैंने 20 खरीदी थी, मैंने 20 रुपए की और खरीदी 80, और मुझे था कि अब ये मल्टीप्लाई होगा ना। तो वो मैं लेके वापस आया हूँ। अब मुझे अभी तक याद है कि आई वाज, पूरे शॉपर को मैं घुमा रहा था कि ये अब बस कमाल हो गई, और उसको मैं अपने बैग में डाल रहा हूँ कि मैं कल लेके जाऊंगा और मैं पैसे कमाऊंगा। और अगले दिन मुझे उसने काफी जलील किया, कैंटीन वाले ने, कि ये आप रुपना बचाते। एंड आई वाज सो ब्रोकन कि मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा था, और उसने मुझे चल गया, और उसके बाद मतलब मैं कितना अरसा उस कैंटीन पे नहीं गया। आई फेल्ट इंसल्टेड कि नॉट But your इंसल्टेड, first आई startup फेल्ट लो at कि मे in बी आई वाज grade डूइंग one, समथिंग रॉन्ग। आई आपका पहला थॉट स्टार्टअप। दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप। तो खैर उसके बाद अब दोस्त इतने ज्यादा थे, और आई हैड ऑल द क्राउड एंड आई कुड डू द कॉन। तो फिर एपी नूरी कॉल, वी स्टार्टेड डूइंग द कॉन्सर्ट्स। कॉन्सर्ट्स के साथ जब मैं स्पॉन्सरशिप के लिए गया हूँ, तो वहां से धक्का पड़ा एक स्पॉन्सरशिप से। तो मुझे समझ आई कि मुझे अपना ब्रांड कर लेना चाहिए, और ये मैं खुद कराना शुरू कर दूंगा। वी यूज्ड टू, दैट वाज अ टाइम व्हेन यू यूज्ड टू बाय, मतलब लेड जेपलिन वगैरह और ये सारी टी शर्ट्स पाकिस्तान में नहीं मिलती थी, अच्छी टी शर्ट किसी के पास नहीं मिलती। तो आई वाज लाइक, व्हाई नॉट वी मेक आवर ओन टी शर्ट्स। तो माय फादर murdered in 93, for instance. I grew up listening to his stories that he was one of the best businessmen. He was the role model that I follow. तो हमारी 3 टेक्सटाइल मिल्स थी पहले, जो कि खत्म हो गई। He was kidnapped, but I was only 4 years old. तो उसके बाद से हम लोग बिल्कुल कुछ काम नहीं, कोई चीज नहीं की थी, और सब कुछ खत्म हो गया हुआ था। So he was my role model. I wanted to be somebody like him. He was a very giving person. अब जब मैंने ये सोचा, तो मैंने कहा ठीक है, ऑर्किड का टाइम था, और मैंने सोचा कि टी शर्ट्स बना के ना ऑनलाइन बेचना शुरू करूंगा। और कॉन्सर्ट्स तो मैं कराता हूँ, तो कॉन्सर्ट्स के ऊपर मैं, उसके अंदर ब्रांडिंग मेरी हो जाएगी, और आई विल स्टार्ट सेलिंग द टी शर्ट्स, और सबके इंडोर्समेंट्स भी हो जाएंगी, और चीजें भी हो जाएंगी। एंड आई हैव गुड एस्थेटिक्स, तो आई विल डू इट। पर सोचा था कि हम लोग 100 पीस बनाऊंगा, तो आई एंडेड हेल लॉट ऑफ क्वांटिटीज। और तब मैंने सोचा, तब ई कॉमर्स का कोई खास पता नहीं था, डिजिटल का पता नहीं था, ई कॉमर्स का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। द ओनली थिंग आई वाज रिलाइंग ऑन वाज ऑर्किड। तो बनाने गया हूं, तो पता चला कि इसके अंदर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी कोई चीज होती है। नेटिंग करने के लिए मिनिमम कितना नेट होगा, अगर क्वालिटी की बनानी है। अगर डाइन करनी है, तो डाइन के लिए मिनिमम लॉट साइज क्या है, 400 केजीज की लॉट होगी, तो एक कलर में 400 केजीज होगा। तो फिर पता चला कि 400 केजीज में अगर 4 टी शर्ट्स 1 किलो में निकलती हैं, तो इसका मतलब ये है कि 400 केजीज इज व्हाट, 1600 पीसेस। My math is terrible. कि I'll यार take ये your तो word for स्केल अप, it. हाँ ये तो स्केल अप करना पड़ेगा, ये तो ऑर्किड के ऊपर 10-10 डिजाइन नहीं बिकने वाले। ठीक है, तब आपकी सोच छोटी होती है। तो वो करते करते मैंने कहा अच्छा शॉप भी बना लेते हैं। वाई ब्लॉक गोल मार्केट बड़ी इन मार्केट होती थी उस टाइम के ऊपर, तो Right. वो बड़ी, दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो वाई ब्लॉक गोल मार्केट के अंदर आई डिड लाहौर के अंदर, तो वहां पे एक आउटलेट बनाया।
अब मैं O levels में था and I was doing an outlet. ठीक है, that was my first outlet. और मजे की बात ये है कि मैंने कुछ 12,000 टी शर्ट्स बना ली थी, 7 हुडीज, पोलो शर्ट्स, कुछ तकरीबन 14-1,000 टोटल गारमेंट बना लिया. अब वो हुआ ये कि वो बनाते बनाते पता चला ये तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी है. हमें नहीं था, मुझे अंदाजा नहीं था कि अब जब बना रहे थे तो मैं कहता कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज. अच्छा 1:1 की रेशो. अगर स्मॉल 10 पीस हैं और मीडियम 20 पीस हैं तो इसका मतलब ये कि अगर स्मॉल के 10 खत्म हो गए तो सिर्फ मीडियम रह जाएगा. तो मैंने कहा नहीं नहीं यार, और ज्यादा बना ले. तो उससे हुआ ये कि when I scaled up and I went into the industry, so I figured out कि how a t-shirt is made. So I did that all by myself. तो मुझे समझ आ गई कि टी-शर्ट कैसे बनती है. मैंने फिर मतलब O levels का बच्चा जो कि खुद खड़ा होकर प्रिंटिंग भी करा रहा है, निटिंग भी करा रहा है. I remember buying yarn myself. So पहले yarn के बैग मैंने खुद खरीदे. yarn के बैग के अंदर निटिंग वाले ने चोरी की, मुझे पता लग गया. लेकिन I had to digest it. वो सारा प्रोसेस देख के I knew it on my fingertips कि how a t-shirt is made. yarn का काम I've क्या होता always wanted to have my own t-shirt company. है. Everybody has this dream. I have ideas, I have designs in my mind, and I want to launch a brand. But what would you say to someone like me? Ek to, I wanted to ask you and point out, do you think it was valuable to start or thinking like an entrepreneur early on? What can entrepreneurs learn from your lessons by becoming an entrepreneur early on? Was it that try things, and if you fail at them, it's okay, then just move on to the मैं next हमेशा thing? कहता हूँ there are only two ways to learn. I always say this to all the kids that come and ask for suggestions. There are only two ways to learn. Number one is the hard way. You need to take all the money out. You need to start investing. भागे, जाया हो रहे होंगे पैसे, तबाह हो रहे होंगे आप, लेकिन आपको एक्सपीरियंस हो रहा होगा. So you'll be gaining experience. By the time आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास पैसे खत्म हो चुके होंगे. ठीक है, और तब आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है. ठीक है, दैट इज द हार्ड वे. ठीक है. द अदर वे इज मेक समबडी योर मेंटोर. उस्तादी शागिर्दी बहुत जरूरी है, वो अब खत्म हो गई है, बहुत कम हो गई. बिल्कुल. So somebody who has already made the mistakes, let him mentor you. He will save you from certain places. लेकिन लोगों को क्या कहते हैं, वो मशवरे, अब की नस्ल में बड़ा फर्क आ गया हुआ है. मैंने भी नोट किया है. पहले एक मेंटोरशिप होती थी. आप देखें ना, एक टायरों वाला, पंक्चर लगाने वाले का भी एक उस्ताद होता है. बिल्कुल. वो उसको मार रहा होता है, वो उसको बता रहा होता है, उसको सिखा रहा होता है. ये सिर्फ दो ही तरीके हैं. देयर इज नो थर्ड वे अबाउट इट. तो इधर यू जस्ट जंप इन. दैट इज व्हाट आई डिड. आई डाइव्ड इन. मैंने तो बगैर किसी चीज को सोचे समझे आई डाइव. तो खैर, उससे वो बड़ा अच्छा तरीका है. उससे आपकी लर्निंग बड़ी अच्छी होती है. लेकिन दूसरा तरीका किसी को मेंटोर बना लेना इज ज्यादा बेहतर. खैर, जब टी-शर्ट्स का शुरू किया तो फिर दो एनजीओस के ऊपर मैं काम कर रहा था. दैट इज बाय द नेम. एक मैंने हेल्प के नाम से एनजीओ शुरू की थी. अब वोकेशनल ट्रेनिंग और सिलाई और साथ साथ, क्योंकि मैं एक डायरेक्ट मजदूर लोगों से भी मिल रहा था, स्टिचिंग वालों से, उनके मसले मुझे नजर आ रहे थे, उनकी चीजें नजर आ रही थी, उनके बच्चे कहाँ पे पढ़ते हैं. मेरे प्रिंटिंग वाले दोस्त बन गए. मेरे जो बिल्कुल उनके वर्कर होते हैं, जहां जहाँ पे मैं खड़ा होकर काम कराता था, वो भी मेरे दोस्त बनना शुरू हो गए. तो खैर, जब पहली मैंने अपनी 20 स्टिचिंग मशीन्स खरीदी, ये लेवल्स का टाइम था, 20 स्टिचिंग मशीन्स खरीदी हैं. और अब मैंने ऑर्डर के लिए भागना शुरू कर दिया था यूएस में. आई यूज्ड टू ट्रेवल टू यूएस. हमारी सबकी इमिग्रेशन हुई थी और वहाँ पे एक कोरियन था, दैट ही वाज माय फर्स्ट कस्टमर. उसने मुझे मजाक किया ना ऑर्डर. मैं उल्टी शेव करता होता था कि मेरी दाढ़ी निकल आए. फैक्ट्री की अपने मसाइल होते थे. अपना नंबर मैंने लिख के लगा दिया था और सारी लेबर, जितनी लेबर थी, वो समझती थी कि एक छोटा सा बच्चा आ गया जो फैक्ट्री चला रहा है. तो उसने भी मुझे बड़ा मैन हैंडल, मतलब वो नहीं कहते कि टॉर्चर वो टॉर्चर वाले लेबर इंटेंसिव सेटअप्स के टॉर्चर भी मैंने देखे थे. तो Do you think it is valuable for an entrepreneur to see the entire value chain? Yes, I say this. You should fear an overnight success. It will kill you. You won't be able to learn anything. If you get successful overnight for nothing,
and you don't have the skill set and you don't know how it is, and you get famous overnight and you start selling, so आप कुछ learn नहीं किया होगा. वो And टॉफीज that, वाली कहानी, yeah, टॉफीज वाली कहानी आपकी. हाँ, आप बड़ी जल्दी फेल. फिर देखो ना, आप ओवरनाइट एक चीज आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी और आप उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास वो स्किल सेट नहीं होगा, आपने वो जर्नी नहीं की हुई. तो व्हाट आई टू मी व्हाट मैटर्स इज द जर्नी, और जर्नी का मजा है. उसके बाद आई गॉट इनटू टेक्सटाइल्स, और टेक्सटाइल के अंदर फिर ऐसा चले, अल्लाह का शुक्र है कि आई स्केल्ड अप 20 स्टिचिंग मशीन से 150 स्टिचिंग मशीन्स. और हमारे मतलब एलईसी के फर्स्ट ईयर में आई रिमेम्बर आई हैड अराउंड 200 एम्प्लॉइज. उसके अंदर फिनिशिंग वाले और दूसरे, हर ऑल्टरनेट डे के ऊपर हमारी, मैं शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा था. तो इट अ न्यू वर्ल्ड ओपनड अप टू मी, जस्ट मीटिंग एंड ग्रीटिंग पीपल. वो जो मुझे पहला 6000 हुडीज का ऑर्डर मिला था, क्या कहते हैं, फ्रॉम द कोरियन गाय, इट वाज जस्ट आउट ऑफ फन. दैट गाय वाज टेस्टिंग मी कि ये इतना सा बच्चा है, ये जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है या क्या कह रहा है ना. लेकिन आई वाज वेरी पैशनेट, आई वाज टॉकिंग टू हिम, आई न्यू द गारमेंट, आई न्यू एवरीथिंग इनसाइड आउट, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर हिम कि ये छोटे से बच्चे को कैसे पता है. तो उसने मुझे वो पहला ट्रायल ऑर्डर 6000 पीस का दिया, और उसके ऊपर मैं लग गया. मैंने कहा इसमें कुछ भी ना बचे कोई बात नहीं, बट आई एम गोइंग टू मेक द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट. दैट वाज माय थिंग फ्रॉम डे वन. तो फिर आई गॉट इनटू टेक्सटाइल्स, और टेक्सटाइल्स को फिर मैंने स्केल अप किया, और उसके बाद एक और ब्रांड अपना शुरू किया. उससे पहले नॉक्शियस टीज था, फिर उसके बाद वो खाली टी शर्ट से हम लोग सीख के, अब मुझे डेनिम भी आती थी, अब मुझे हुडीज का भी पता था, अब मेरा एक्सपोजर बढ़ चुका हुआ था. तो फिर मैंने क्लोथिंग लाइन रिवोल्ट के नाम से क्लोथिंग लाइन शुरू की. वो फिर लोग की थी. अब मेरा हर दूसरे दिन एक शिपमेंट एक्सपोर्ट होती थी, और मेरे लिए था कि जो क्लोथिंग लाइन के लिए जो मुझे 100 पीस बनाने होते थे, उस पर उतना ही टाइम लगता था जितना मेरा 1 लाख पीस की प्लानिंग के लिए लगता था. तो आई वाज लाइक कि उससे कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी क्या है. तो फिर मुझे रिवोल्ट को शट डाउन करना पड़ा. उससे पहले एक और मैं एलईसी का ड्रॉप आउट सीन भी बता देता हूँ. तो ये बड़े मजे का, सेकंड ईयर शुरू हुआ था एलईसी का, और मेरा बड़ा अच्छा सीजीपीए था, 3.7 प्लस था. और लेकिन मेरे से यूनिवर्सिटी जाया नहीं जाता था. बर्की कैंपस में कैंपस शिफ्ट हो गया, और आई हैड टू गो टू द फैक्ट्री ऑल द वे, और कहीं पे एक तरफ से भाग रहा हूँ दूसरी जगह पे जा रहा हूँ. मेरे पास ऑर्डर था टॉयज आर अस और बेबीज आर अस का वर्कवेयर का. ठीक है, तो आई वाज डूइंग इट फॉर नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा. बेचारे अभी तो वैसे ही बंद हो गए शायद. तो बस अब उसके अंदर ना एक यार्न में एक मसला आया, और पूरा जो गारमेंट था ना, हमने बड़ी जल्दी की, बड़ा उसकी टाइम लाइन बहुत शॉर्ट थी उस ऑर्डर की. तो हमारी एक गलती थी, उसके अंदर यार्न की भी गलती थी. यार्न में कोई मसला आया, और उसकी वजह से हमारा जितना माल था ना, हमने सारा नेट करा के आगे टाइम भी करा दिया. तो उसके अंदर लाइंस आ गई. तो मुझे फैक्ट्री से फोन आया कि सर ये मसला हो गया. और मैं मतलब ये वो वाला टाइम था कि मैं एक मसला नहीं सुन सकता. मैं आई वुड हैव गॉन, मतलब मैं री इन्वेस्ट कर रहा था. आई वाज री इन्वेस्टिंग एवरीथिंग, आई वाज स्केलिंग अप एवरी डे, आई वाज स्केलिंग अप. तो जैसी मुझे कॉल आई तो मेरी तो जान निकल गई. उस दिन हमारी को फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन थी, और आई वाज सपोज्ड टू प्रेजेंट विद द ग्रुप. स्लाइड रीडिंग नॉट अलाउड. मैं रट्टा लगा रहा था, और मुझे ये फोन आता है. तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं जल्दी से प्रेजेंटेशन दे के आई विल कम. आप सोचो कि अब प्रेजेंटेशन देने गया हूँ, तो मुझे ना जैसे ही आई वाज अबाउट टू बिगिन, आई मेरा फोन बजा और मुझे पहला लफ्ज भूल गया. एंड आई डिडंट नो के व्हाट टू से. अब टीचर सामने बैठी हुई थी, मैंने ना स्लाइड की तरफ मुंह किया, तो शी वाज लाइक आई एम सॉरी, स्लाइड रीडिंग इज नॉट अलाउड. यार अच्छा. शी वाज लाइक आई हैव नेवर सीन यू इन द क्लास. आई वाज लाइक वाकई मैं क्लासेस नहीं ले रहा था. आई वाज मतलब मैं फैक्ट्री और उसके बीच में भाग रहा था ऑल द टाइम. तो मुझे तब ना स्ट्रक मी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ ना, व्हाट एम आई डूइंग टू माई सेल्फ. आई शुड बी लॉयल, मतलब आई नो कि ठीक है, लेकिन मुझे साथ इसको करना है. मुझे फैक्ट्री ज्यादा इस टाइम के ऊपर माई प्रायोरिटी. तो बड़े टीचर ने मुझे कहा कि डू यू नो व्हाट क्लास दिस इज. एंड आई स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं था याद कि ये क्लास. और सारे हंसना शुरू हो गए. एंड आई वाज लाइक ऐसे कहती उनके मुझे वो अल्फाज अभी तक याद है. शी वाज लाइक आई थिंक यू डोंट बिलोंग. Grabbed whatever I had in my hands and I just And you were dropped like, it. yeah, maybe I don't belong here, ma'am. Yeah, I think you're right. I don't I've got belong a here. factory to So run. I left.
जब मैं उधर से बाहर निकला हूँ ना, आई न्यू दिस इज माई लास्ट डे इन द यूनिवर्सिटी एंड आई एम नॉट कमिंग बैक टू दिस प्लेस Wow. एटलीस्ट। और निकलते हुए मैंने फौरन पूछना शुरू किया कि मैं सीएसएस की प्राइवेट तैयारी करूंगा, Mm, मैं सब mm, प्रूव करूंगा कि मैं अक्लमंद हूँ, मैंने mm. पढ़ाई की वजह से नहीं छोड़ा, मैंने Mm. हसल की वजह से छोड़ा। मैंने प्राइवेट बीए के पेपर दे दिए, ठीक है, ठीक है। फिर बीएनयू के अंदर इनरोल कर लिया। उनको मैंने कहा कि मुझे एग्जेम्प्ट करें, मैं क्लासेस Mm, नहीं ले सकता, mm, ना प्रेजेंटेशंस दे सकता। उन्होंने कहा कि अच्छा, बट दे अकोमोडेटेड मी अंडर सर्टेन थिंग्स के अगर आप ये करेंगे तो हम आपको इनरोल बिल्कुल कर ठीक। लेंगे। तो मैंने कहा एलईसी तो ऑफ है, तो अब मैं इधर एनरोल करूंगा, बीए के प्राइवेट पेपर दे के फैक्ट्री में बैठ के सीएसएस की तैयारी शुरू कर दी। तो जब Mm, mm, सीएसएस का मेरा पहला एग्जाम जिस दिन आना था, उस दिन मैं 21 का ही नहीं था। mm, तो mm, mm. 24 फरवरी मेरी बर्थडे होती थी और आई कुडंट पेयर। तो मैंने कहा यार, Okay. तो खैर, बहरहाल अब मसला ये पेश आया कि जब मैं फैक्ट्री में था, आई वाज डूइंग वेरी गुड, टेक्सटाइल का Mm. क्राइसिस है, और But साथ ही what a साथ responsibility, Umar. You must have felt like 200 employees. I mean, ये getting more into the people aspect of that. I know you're a big people person. How did that feel all of a sudden, such a young the age, only having reason I 200? had the only reason I had the orders when nobody had them was कि मेरी फैक्ट्री कभी रुकती नहीं थी। मैं कहता था कि अगर हमें जीरो प्रॉफिट है और सिर्फ हमारे ओवरहेड्स कवर हो रहे हैं, विल Mm. रन, आई वुड Right. नॉट स्टॉप। Mm. क्यों? क्योंकि आप सोचेंगे 200 लोगों का घर आपकी वजह से चल रहा बिल्कुल। है। एंड टू मी, अब किसी के लिए लालच उस टाइम के ऊपर, क्योंकि मैंने कभी वो लालच वाला टाइम नहीं देखा। आई नेवर रिमेम्बर द टाइम व्हेन आई craved for expensive clothes, or I craved for an expensive car, or I craved for something that, because I was hustling from day one. तो मेरे लिए being on the ground and hustling was the adrenaline that drove me. Mm. To me, Mm. adrenaline didn't come from a racing car or something that Right. is to दूसरे लोगों को impress करने के लिए। मेरे लिए ज्यादा मजा मुझे मिल रहा था कि लोगों को मेरी वजह से पैसे मिल रहे हैं और वो Mm. 200 लोग मुझे प्रेज कर रहे हैं और मुझे बॉस कह रहे Super. हैं। वो एक ऐसी बात है, उसकी खुशी एक और है। तो बहरहाल मसला ये पेश आया कि वो वाला बच्चा, वो वाला उमर हुसैन who used to meet people every day was missing. So just imagine कि I had such a big फ्रेंड्स नेटवर्क के हर रोज 4-5 दोस्तों की बर्थडेज होती थी अच्छा। और कभी किसी को ना नहीं कर सकता था। जब मैं फैक्ट्री में था तो फैक्ट्री के अंदर ये सब खत्म हो गया। अब आई Mm. वाज, मेरा जीना मरना फैक्ट्री थी। सुबह Mm. उठ रहा हूँ, फैक्ट्री भाग रहा हूँ, शिपमेंट्स हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह एंड के ऊपर जा रही होती हैं, वेसल हमेशा मिस होने वाला होता है और ऑडिटर आपके सर के ऊपर होता है और आप, this is how industry works. ठीक Right. है, never stops. This is a cycle that goes on. But that Umar who used to meet people was missing. Mm. मैं वो इंसान था जो रोजाना हजारों लोगों को स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, हर जगह पे मिल रहा था। अब Right. जब मैंने यूनिवर्सिटी भी ऑफ कर दी, सब कुछ खुद पढ़ना शुरू कर दिया, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन वाज मिसिंग एंड Mm. आई वाज नॉट हैप्पी विद माय लाइफ जस्ट डूइंग द टेक्सटाइल्स। Right. अब टेक्सटाइल के अंदर मैं एक ऑफिस में कैद हो गया था और मैं सारा दिन वो 200 एम्प्लॉइज को देख रहा था। ठीक है, उनसे मैं इंटरेक्ट कर नहीं सकता था क्योंकि मैं उनका बॉस था और Yeah. वहां पे एक पर्सोना और किस्म का चाहिए था। अब हुआ ये कि जब रिवोल्ट मैंने लॉन्च किया, और रिवोल्ट को मैं बंद कर रहा था क्योंकि वो मेरी टेक्सटाइल को सफर करा रहा था, मैं Mm. ज्यादा टाइम में गुजारना शुरू हो गया हुआ। तो रिवोल्ट, और हम लोग क्योंकि फ्रेश गारमेंट बना रहे थे, लोगों को आदत थी करीम ब्लॉक वगैरह से सस्ती कपड़े खरीदने की, लेफ्ट ओवर बिल्कुल। कपड़ा, लेफ्ट ओवर टी शर्ट्स खरीदने की। तो हमारी मतलब जो फ्रेश प्रोडक्ट है वो महंगी बनती होती है, वो सस्ती नहीं है। तो लोगों को ये बात नहीं पता, पीपल डोंट नो दैट। लोगों को लगता है कि एक्सपोर्ट है तो वो होगी, तो फ्रेश गारमेंट इज एक्सपेंसिव। Mm. अब मैंने जब क्या कहते हैं रिवोल्ट को मैं शट डाउन कर रहा था, तो तब इट हिट मी कि क्यों ना मैं एक फूड के वेंचर को ट्राई। वैसे मतलब इट वाज समथिंग दैट वाज देयर। मैं जब भी ट्रेवल करता था, मतलब आई यूज्ड टू ट्रेवल टू वेगास एवरी 2 टाइम्स अ ईयर। Mm. फेयर, Mm. एक फेयर होता है लॉस वेगास के अंदर, तो उसके ऊपर
तो मैं हमेशा नए खाने की जगह ढूंढ रहा होता था, मैं कुछ खा रहा होता था। और पाकिस्तान में आई ऑलवेज फेल्ट कि देयर इज अ ह्यूज गैप, कुछ मीठा अच्छा खाने को नहीं है, कुकीज नहीं मिलती थी। अच्छी कुकीज सिर्फ सबवे के पास, वो भी बाद में आई। ठीक है, तो उससे पहले देयर वाज नोबडी, कोई अच्छा मीठा कुछ नहीं था। तो मिलेगा नहीं। मेरे दिल में था कि मतलब वही जो 3 क्लास का बच्चा जिसमें एक कुकरी कुकरी क्लब। क्लास आप डिड यू गेट टू डू इट? हुआ फिर नो नो कुकरी आई क्लास? नॉट। वो नहीं हुआ? फिर अगर घर मैंने पे कुकरी आप खुद ही? कभी घर पे भी नहीं बनाया था, अच्छा। बट आई न्यू कि आई लव फूड, तो आई हम्म, कैन डू ठीक। इट। वाज जस्ट दिस, इट वाज या नॉट ए वो होगा। तो तुम सोचो कि वो जब रिवोल्ट बंद किया तो किराया वगैरह हमने एडवांस में दिया हुआ था, पैसे पे किए हुए थे। तो मुझे था कि इसको बंद करके वो पैसे वापस लेने की बजाय क्यों ना मैं ट्राई कर लूँ। अब मुझे मेरा छोटा भाई और वो मेरी बहन थी, वो कहती है कि आर यू किडिंग मी, मतलब यू डूइंग इनटू टेक्सटाइल्स और ये तो तुम नहीं बना सकते, यू डोंट नो हाउ टू कुक, यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ कुकिंग, मुझे चूल्हे की आग नहीं जलानी आती, तो क्या करोगे ना। तो मैंने कहा मुझे बस पता है क्या है। तो मैंने अभी तक नाम स्वीट टूथ नहीं दैट सोचा। बिलीफ वाज देयर। I've always had faith. So there was one thing with me that I've always known, the power of faith. मैंने कभी हाथ उठा के दुआ नहीं मांगी, मुझे पता है कि anything that I ask for, मतलब in my heart is fulfilled. अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा। तो बहरहाल that is when the Sweet Tooth was born. Sweet Tooth बनाया का लोगो मुझे याद है पहली दफा अपने हाथ से डिजाइन किया था। तो वही जो अभी लोगो है? वो हाथ से डिजाइन हुआ। अच्छा, उसकी वेरी कौन नाइस। It's supposed to have a smiling face. So I had this habit of doing everything myself. अच्छा। मैंने कहा कि यार नहीं, आई एम गोइंग टू एक्सपेरिमेंट दिस। अब आप इमेजिन करो, हमारे साथ एक और आइसक्रीम शॉप थी और दे वर सेलिंग गुड, और हमारे लड़के बड़े डिसहार्ट हुए होते थे कि बॉस उनके पास इतना रश है, हमारे पास नहीं। और मैं कहता था कि हमने एक भी चीज जो कोई और कर रहा है वो नहीं करनी। राइट। मतलब वी आर नॉट सपोज टू सेल एनीथिंग दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट, वी नीड टू क्रिएट समथिंग न्यू एंड आई वुड डू। तो बहरहाल जब ये अब सही जर्नी शुरू होती है जो एंटरप्रेन्योरल है, वो यहाँ से कि जबरदस्त। लर्निंग कहाँ पे और हमने गलतियां क्या क्या की। तो मुझे याद है पहली दफा जब शुरू किया तो मैं बड़ा डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे फेथ था कि सब कुछ ठीक होगा। एक एंड मैंने व्हाट्स द लोकेशन? व्हाट वाज दिस फर्स्ट लोकेशन? ये लालिक किधर है चौक, लाहौर में? ठीक हो डिफेंस गया। में लालिक चौक में, लालिक चौक एंड का धर्मा। हाउ लॉन्ग अगो वाज दिस? दिस इज 10 साल हो गए, 11 साल, माशाल्लाह। ओके। 10 years बैक। ओके। तो मैंने एक फिर? शेफ को बुलाया, एक शेफ बुलाया कि आप सर प्लीज हमें ज्वाइन करें। और शेफ साहब आते हैं, एंड द शेफ केम एंड ही इज लाइक ये सामान लेके आए। आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ये कुक करेगा और मैं देखूंगा और हम कुछ बनाएंगे और मैं कुछ अपनी इंटरप्राइजिंग चीज बीच में डालूंगा और कुछ मजेदार चीजें बनाते हैं ना। तो शेफ साहब आए, उन्होंने आके ना सबसे पहले बोला, वो किचन में गए, सारा सामान आया हुआ है जो उन्होंने मंगवाया था। तो वो किचन में गए और वापस आके कहते हैं कि मेरी शेफ कैप किधर है। तो मैंने कहा सर आप ये पी कैप पहनने, मतलब किचन में खड़े होके कैप वाली हाइट भी नहीं है किचन की, तो व्हाई डू यू नीड अ शेफ कैप। तो वो कहते हैं कि सॉरी जी, मेरे जूनियर हैं बाकी सारे, तो उनके सामने मैं शेफ कैप के बगैर मैं किचन में नहीं खड़ा हूँ। दैट वाज द वेरी मोमेंट आई न्यू कि आई कैन नेवर बी ब्लैकमेल्ड बाय दीज पीपल, तो दिस इज नॉट द वे फॉर, आई नीड ओके। टू नो व्हाट्स कुकिंग। तो उसी वक्त मैंने शेफ साहब को कहा कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आइंदा जिंदगी में आपने मेरे सामने नहीं ठीक है। जा सकते, कोई बात। मैं बहरहाल दैट इज व्हेन आई गॉट इन द किचन एंड आई वाज लाइक आई विल क्रिएट एवरीथिंग माय सेल्फ, आई विल डू इट, इट्स परफेक्टली फाइन, कोई मसला नहीं, और मुझे खुद सीखना है और मुझे खुद बनाना है। तो सबसे पहला आइसक्रीम का फ्लेवर, मुझे नुटेला बहुत पसंद थी। ये वो वाला टाइम है जब नुटेला वाज नॉट इवन फेमस, पीपल डिडंट ठीक न्यू है। अबाउट इट। ठीक है, इट वाज नॉट कूल बैक देन। तो अच्छा। तब मैंने कहा कि सबसे पहला आइसक्रीम का फ्लेवर मैंने नुटेला का बनाया। ठीक है, और जो लड़का वो आइसक्रीम डाल रहा था ना, उसको मशीन चलानी आती थी, वो कारीगर था, और उसके हाथ कांप रहे थे कि ये इतनी महंगी आप नुटेला बीच में डाल रहे हैं, तो ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात, कुछ नहीं होता, उनको आदत थी आर्टिफिशियल फ्लेवर डालने की ना। तो राइट, मैंने बिल्कुल। कहा आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ नहीं डालना,
that has to be the solid thing. We have to admit it. तो बहरहाल वहां से शुरू हुआ and the whole world opened up to me. फूड का, चीजों का, इसी के साथ साथ मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी. मतलब मैंने बहुत अर्ली एज में बहुत कमाया, बहुत देखा, पैसे आते देखे, सब कुछ देखा. तो मुझे एक हमेशा आई हैड दिस थिंग इन मी कि लोगों की लाइफ किस तरह से इफेक्ट हो रही है, चीजें कैसे हो रही हैं. तो जब मैंने ये जान लिया कि मुझे कुक और शेफ नहीं चाहिए, तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि आई कैन हायर पीपल दैट नो वन हायर्स. तो इस मार्केट में सबसे बड़ा मसला ये था कि लोग आपके पास ज्यादा देर, एक कुक आपके पास ज्यादा देर टिकता नहीं है. दे जंप, कोई 2000 ऊपर देता है, वो दे जंप, वो चेंज कर लेता. तो मैंने सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइज किया. एक स्वीट था और मैंने अपनी सारी रेसिपीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया. ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन वाज द की फॉरवर्ड. तो जब स्टैंडर्डाइज किया तो मुझे समझ आ गई कि ये तो प्री मिक्सेस बनाने. प्री मिक्सेस के लिए मैंने एक पीपल, आई कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड पीपल, उनको मैंने हायर किया. उनके हमने प्री मिक्सेस की मैंने एक असेंबली लाइन बनाई कि इनको नहीं पता कि ब्राउनी बनती कैसे है, लेकिन इनको ये पता है कि ब्राउनी के मिक्स को एक पैकेट में कैसे बनाना है. राइट. तो आई हायर्ड देम टू मेक प्री मिक्सेस एंड दे वर लॉयल टू. वो अभी तक मेरे लॉयल एम्प्लॉइज हैं. मतलब nobody would ever give them a job and I provided them with a job that is paying them better than a, और वो लॉयल ज्यादा हैं. जो आम लोग बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, वो लोग इतने दिल से काम नहीं करते जितने ये लोग दिल से काम करते हैं. ठीक है. तो बहरहाल हमने अपनी असेंबली लाइन के ऊपर इनको किया और उसकी उनकी दुआएं और उनकी वो चीजों से आप अपलिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं. आपको खुद मजा आना शुरू हो जाता है, आपके काम में बरकत पड़ना शुरू हो जाती है. वो कहते हैं ना कि जब आप घर बनाते हैं, अगर आप खिड़की इस नीयत से रख लें कि इस खिड़की में से अजान की आवाज आएगी तो आपको सवाब मिलना शुरू हो जाएगा. दिस इज एग्जैक्टली हाउ दिस हैपेंड. मुझे एक नशा शुरू हो गया ऑफ डूइंग समथिंग गुड. तो बहरहाल फिर हमने अपनी हर चीज उसके साथ इंगेज करना शुरू की. तो to me, Sweet Tooth was more like a platform that enabled me to do music, to do food, to do जो भी अब एक जिसके ऊपर हम लोग लोगों को एम्पावर कर पा रहे हैं. फिर हमने ट्रांसजेंडर्स को हायर करना शुरू किया. बड़े मजे की बात है कि पहली दफा जब आई डिड नॉट नो कि मैंने ना एक जेन में था कि अगर हमने फिजिकली डिसेबल्ड को रखा हुआ है तो हमें एक स्पेसिफिक कोटा ट्रांसजेंडर्स के लिए बुलाना चाहिए. ठीक है. दूसरा स्वीट टूथ खुल रहा था और आई वाज जस्ट अबाउट टू अनाउंस दिस. I was just about to announce this. इधर नहीं है, मैं देता हूँ. I was just about to announce this. और मैंने I gave an interview call for the hiring of transgenders. तो ना आप सोचें कि मैं स्वीट टूथ के बाहर खड़ा हूँ और फोन सुन रहा हूँ और ट्रांसजेंडर्स आ रहे हैं मुझे इंटरव्यू देने के लिए. उनके गुरु के साथ मेरी कोऑर्डिनेशन हुई थी और एक पूरा कैरी डब्बा था और उसके पीछे एक रक्षा था. और मैं स्वीट टूथ के बाहर ना उन्हें बता रहा हूँ कि आप लालिक चौक से इधर आए. तो मैं सामने खड़ा हूँ. जस्ट इमेजिन अ रक्षा इन अ पूरा डब्बा स्टॉपिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ऑल द ट्रांसजेंडर्स आर आउट, जो कि पूरा तैयार होके आए हैं इंटरव्यू देने के लिए विद ऑल देयर एक्साइटमेंट दैट नेवर इंटरव्यू. ठीक है. तो उसी वक्त ना वो देख के एक कस्टमर आइसक्रीम खा रहा था, मुझे अभी तक याद है. उसने उधर ही ऐसे आइसक्रीम छोड़ दी क्योंकि इकट्ठे 16-17 ट्रांसजेंडर्स इकट्ठे चल के उनकी तरफ आ रहे हैं ना, हमारी तरफ सीधे. There's an iconic selfie of you with the group. Yes, Iconic picture. Yes, yes. yes. Amazing तो वो जो picture. सारे आ रहे हैं ना, तो मैं एकदम थोड़ा सा वो हुआ कि अच्छा अब सारे कस्टमर्स, मेरा गार्ड बाहर खड़ा था स्वीट के ना, और वो साथ ही कहता है कि सर ए तुसी की करन लगे हो. I was like, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, बहुत मजा आएगा. आप सोचें कि हमने जब वो इंटरव्यूज किए, इतना मजा आया. They are such amazing people. यार. They work with all their heart. They are amazing. उनमें से एक था, मेरे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था कि अगर कोई कस्टमर आपसे चिकन बर्गर मांगता है और आप उसको बीफ बर्गर ला देते हैं और उसको 40 मिनट्स हो गए, क्या करेंगे आप? वो कस्टमर बहुत नाराज है. अब उसका आगे से जवाब पता है क्या था? सर हम नाराज ही नहीं होने देंगे. ठीक है.
मतलब they And were, they are really good at that, by the way. they Every are time I amazing. see them at the signal, I mean, they make you laugh, they make you smile, you They know, make you you smile, can't they help make it. you laugh, और आपको मजा भी आता। अच्छा, अब मैं आपको भी बताता हूँ, अभी ये मॉल वन वाले स्वीट टूथ के ऊपर हमारे पास एक ट्रांसजेंडर है जो कि बहुत ही लविंग और बहुत ही अच्छा है। तो उस मेरी कोई दोस्त वगैरह आके बैठी हुई थी, मतलब देयर कस्टमर बिकमिंग माय फ्रेंड। वो बैठी हुई थी और वो ट्रांसजेंडर गया और उसने जाके ना उससे ऑर्डर लेके सारा कुछ दे दिया। उसके बाद ना उनके पास जाते हैं, जाके कहते एक्सक्यूज मी, वो कहते हैं हाँ जी मैडम आप मुझे बताएंगी कि आपने जो कलर जो आपने हेयर डाई किया है ये बहुत प्यारा लग रहा है, आपको पता है? तो दे कॉम्प्लीमेंटेड, यू कैन नॉट Adorable. इमेजिन अ वेटर कमिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग यू फॉर हाउ यू लुक। Yeah. ओके, It's refreshing, right? Because ही वाज they're सो a whole हैप्पी। sector of our population that we're just not including in. You know, I spent 3 years in Thailand, Umar, and transgenders are such a knit part of the society. They're so Oh yes, respected, and literally every 7-Eleven, all the malls, they have some very prominent roles in society, which is really nice to see. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये सोचें कि ये लोग, और क्योंकि इनको हमेशा से इतना, आप देखो हर किसी ने उनको किस तरह से ट्रीट किया हुआ है, they've been mistreated all their lives. A smile can make their whole day. Just imagine that. तो उसकी मतलब आप सोचें कि वो मेरी दोस्त इतनी खुश हुई कि यार, मतलब एक उसने मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट किया है आके, और मतलब इट लिट अप हर डे। तो बहरहाल इस तरह के फिर जब इनको किया तो इससे हमारी लॉयल्टीज बढ़ गई। दे वर Yeah, मोर how does लॉयल। it impact the overall दैट इज society हाउ इट and the हैज इम्पैक्टेड। business? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि my employees became so loyal, they would not leave me, they would give their lives for me. अब मैं हमेशा कहता हूँ कि we currently employ around 300 plus employees. Okay, so मैं थोड़ा बिजी हूँ, ये बंद कर। So I always say this कि if we are a reason to employ 300 plus employees, just imagine एक बंदे के ऊपर 5 लोग dependent हैं in average. So there is a cycle of 1500 people who are eating because of you. अगर आप रोजाना किसी को 200 रुपए का खाना खिलाते हैं या 200 रुपया एक बंदे का आम एक्सपेंस है, तो that is 300,000 rupees a day, and that is 9 million a month. तो What a अगर feeling. किराया आता है और मैं 10 लाख बीच में डाल देता हूँ, मैं 10 लाख का नुकसान भी करता हूँ, तो आई एम एबल टू बाय फूड वर्थ 9 million in 1 million. तो अगर किसी को रोटी 9 रुपए की पड़ रही है तो उसकी मुझे कॉस्ट इज 1 रुपी। तो यू आर नेवर लूजिंग। सो इफ यू डूइंग बिजनेस यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। You're not losing. The circle going on, there are people eating because of it. Hmm, hmm, hmm. I've also heard a rumor about you, Umar, that you always travel on local transport, even when you're Oh going yeah. up north. Oh I yeah. mean, what is the reason? How does उसकी it? एक बहुत बड़ी Yeah. रीजन ये है उसकी एक बहुत बड़ी रीजन ये है कि क्योंकि मेरा लॉन्ग हॉल होता है और मुझे हुंजा जाना है, नथिया गली जाना है। उसकी पॉजिटिव साइड तो भी दूसरी बिजनेस वाली तो एक साइड है ही है, मैं आपको दूसरी Hmm, साइड बताता हूँ hmm, कि जब आप जा रहे होते हैं और आपने एकदम निकलना है और आपने हुंजा जाना है, या अगर आपने नथिया गली वाली स्ट्रीट पे जाना है और 7 घंटे दूर है, 8 घंटे लगते हैं। अगर मैं खुद ड्राइव करता हूँ तो आपको पता है ना, सफर के अंदर खाना खाने के साथ और लेन देन करके आपको किसी बंदे का पता लग जाता hmm, है। ठीक है, hmm. तो सबसे पहले तो बिल्कुल, आपको जाना होता है, आप अपने साथ एक कंपनी ढूंढते हैं कि यार मेरे साथ कोई चला जाए। और right. जो हमेशा मेरे साथ अगर कोई जाता है तो वो 2 घंटे बाद ना वो मेरे टाइप का नहीं होता और मुझे अफसोस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आई एम वेरी डाउन, वेरी हम्बल पर्सन एंड पीपल आर नॉट यूजुअली लाइक दैट। Hmm, तो थोड़ी देर बाद बंदा कहता है कि यार अच्छा ये तो गलती हो गई है। फंस गया मैं। लेकिन सबसे बड़ा प्लस ये है, पहली चीज, यू गेट टू मीट न्यू पीपल। तो मेरी हमेशा आप अगर मैं बस में जा रहा हूँ तो मेरा जो साथ बैठा होगा वो मेरा दोस्त बन जाएगा, गप्पे लगाना शुरू कर देंगे। मैं अगर जब लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं सफर करता हूँ और लोकल ट्रांसपोर्ट के अंदर मेरे मरी वाले पूरे स्टाफ की हायरिंग मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट पे की थी। मैंने Amazing. वाली पूरे स्टाफ की हायरिंग वाज डन इन द लोकल ट्रांसपोर्ट। Legend.
हुंजा में ये होता है। अभी मजे की बात ये है कि उस दिन मैं गिलगित एयरपोर्ट उतरा हूँ और मैंने उतर के ना लोकल उनकी गाड़ी पकड़ी है जो गिलगित से हुंजा जाती है, लोकल अच्छा, मतलब वो सीटें पूरी करते हैं। और मजे की बात ठीक। ये, उस 4 लोग वो थे जिन्होंने मुझे पहचान लिया था कि उमर भाई। वाओ। अब आप ये सोचें कि पहाड़ों के अंदर लोगों के पास ज्यादा चीजें नहीं है बात करने को, दे आर नॉट एज बिजी एज वी आर। राइट। आप जब उनको These मिलते stories spread like wildfire, huh? spread like wildfire. They love you. They start respecting you is one thing. The other Amazing. thing is you get to know okay, what's happening and what's not. Hmm, hmm, hmm. Why is your expansion involved moving to the north instead of moving to like Karachi, Islamabad? Okay, so the thing is मैं कहता हूँ ऊपर से आएंगे, जाएंगे एक जगह, ठीक है, लेकिन ऊपर से आएंगे, ठीक है, ठीक। तो हम लिटरली ऊपर से आएंगे। द आइडिया इज कि एक बिलबोर्ड खरीदना आपको कितने का पड़ता है? बहुत ही महंगा। जब मैं नॉर्थ में जाता था 2015 के अंदर आई ट्राइड, मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस सारे के साथ में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी साथ चल रही बिल्कुल ठीक है। तो God has always blessed me with so many things. I've always thought about मतलब पॉजिटिव साइड देखिए, नेगेटिव में अल्लाह का शुक्र है कि उससे मैं दूर रहता हूँ। तो I found myself in the mountains. So this was 2015 and I say कि 2015 में K2 वाला expedition was my second Hajj. Wow. 2008 में मैंने पहला हज किया था एंड हैड अ वेरी क्योंकि पहली रमजान है तो थोड़ा सा बता देता हूँ। I was the guy who was partying, who was having the fun of his life, who was making money, who was enjoying it all. But I had thing in my head कि शायद मेरी क्या कहते हैं लोग, जब मैंने 2008 में हज के लिए जाना था तो मुझे सब कहते थे कि हमारे लिए दुआ करना, तो मुझे लगता था कि शायद मेरी दुआ कबूल ना हो। लोग मुझे क्यों कह रहे, ठीक है, लोग मुझे बार बार जिधर भी जाता हूँ अमेरिका किसी को मिलता हूँ वो भी ये कहता है कि हमारे लिए दुआ करना। तो मेरे अंदर गिल्ट था कि पता नहीं मैं गुनहगार आदमी हूँ एंड गॉड माइट नॉट आंसर माय प्रेयर्स एंड आई डोंट नो इफ आई एम going for Hajj, what is it going to be? My mother wanted to go, that is the reason I'm going. तो पता नहीं क्या है। तो I remember I sat on a bus from New York to New Jersey and I cried for 4 hours. पूरा रास्ता में रोया हूँ, मुझे नहीं पता चला मैं क्यों रोया हूँ। और मैंने तब नया नया आईपॉड आया हुआ था और वो मैंने अपने छोटे भाई को कहा था कि इसमें गाने शाने डाल दो, तो उसके अंदर सूरज मान स्टार्टेड प्लेइंग और दैट चेंज्ड माय लाइफ। मैं मतलब बहुत रिलीजियस नहीं था, बहुत वो नहीं था, मतलब आई न्यू कि व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड। आई वाज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ द ह्यूमन, मतलब मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होगा, ये मुझे पता। ये आई मेड श्योर कि किसी को मेरे से नुकसान ना हो, अगर किसी को नुकसान हो रहा है मैं किसी तरह फायदा दूं, मेरे से कभी कोई किसी की जात को नुकसान ना हो। तो आई स्टार्टेड क्राइंग, दैट 4 hour जर्नी चेंज्ड माय लाइफ। तो आई क्राइड उसके बाद ना मुझे एक नशा हो गया लिसनिंग टू कुरान एंड राइटिंग इट डाउन। आई स्टार्टेड स्क्रिबलिंग इट एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर थिंग्स के इसको मैं समराइज, तो मैंने पूरे कुरान पाक की पूरी समरी लिखी। तो आई स्टार्टेड राइटिंग इट, दैट ओपनड अप अ होल न्यू, मुझे ये था कि इट्स जस्ट Understanding, a new हाँ, lens to look इट at the ओपनड अप, world. इट ओपनड अप माय माइंड, इट ओपनड मी अप लाइक एनीथिंग। और उसके बाद मतलब वाज अ डिफरेंट पर्सन और इट मतलब बहुत ज्यादा मेरा जो कैरेक्टर चेंज हुआ वो उसकी वजह से हुआ। तो मी देखें आपकी जिंदगी कितनी है, लाहौर के या इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट के अंदर इस्लामाबाद वाले शायद 5 साल और ज्यादा जी लें, लाहौर वाले 60 साल से ऊपर नहीं जाने क्योंकि वाले। हवा यहाँ साफ है। 60 साल से ऊपर लाहौर वाले नहीं जिएंगे, बहुत बड़ा क्यों? क्योंकि पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे हवा साफ है। हवा हाँ, इस्लामाबाद में थोड़ी सी हवा साफ कंपैरेटिवली, ठीक। अच्छा, ठीक। लाहौर के अंदर इफ यू गो अबव 60 इट वुड बी अ बोनस। उसमें से 30 साल यू वर स्लीपिंग, उन 60 सालों में से 30 साल आप सो रहे थे, उनमें से 10 साल आप छोटे से बच्चे थे, आपको कुछ नहीं था पता, ठीक है, और 10 साल आप बुढ़ापे का सहारा ढूंढेंगे। What are you left with? You're left with 10 years. वो 10 साल भी नहीं है आज। और 10 उसके years. अंदर और उसके अंदर What भी are you आप क्या, gonna do in those what are 10 you gonna years? do?
You're in this So, world you for a know, very limited. successful entrepreneurs, Umar, and this is the last question I'm going to ask you before we move on to the rapid fire round, which is a very interesting segment, everyone. We're going to ask some surprise questions from Umar and see what he Okay, says, okay. and then we'll take some questions. So, you know, successful entrepreneurs, and looking at your example as well, they do a significant amount for charity. What I mean, there's a trend in the world, but how charitable are entrepreneurs here in Pakistan, do you find, and what message do you have for them? ये देखो अगर क्या कर आप सकते हैं in your small way, charity, you know? सबसे पहली चीज तो ये है कि चैरिटी इज नॉट, हमें आखिरत का नहीं पता, हम सबका बिलीफ, मतलब मेरा भी कोई खास नहीं है. आई हैवंट सीन व्हाट इट्स गोइंग टू बी लाइक, व्हाट इज हेवन एंड हेल. irrespective of that, charity gives you happiness. Giving away gives you happiness right here, right now, in this world. For those goddamn 10 years that you have, you will be a happy person if you're giving, if you're stripping, if you're letting it go. ठीक है? तो आप, whatever makes you happy, so there is no happiness that comes close to charity. And charity is not about giving something, it's, you can just smiling at somebody's charity, just shaking hands with somebody's charity. उस दिन मैं लोहे का काम करा रहा था, एक छोटा सा उसका लड़का था लोहे वाले का, और मैं वहां से जाके ना उन सबको मिला, और वो उसका जो बेटा था वो इतना खुश हुआ कि इतने बड़े बॉस हैं ये, आके इन्होंने मेरे साथ मिलाया, वो सातवें आसमान पे पहुंचा हुआ. Wow. So just imagine कि how bad as a society we have become, कि we are so egoistic. हम इतने इगोइस्टिक हो गए हैं कि हम लोगों को, हम उस चीज को, हम जमीन पे बैठने को तैयार नहीं. हम लोग फॉल्स ईगोज के अंदर घुस गए, हम लोग प्लास्टिक के बन गए, हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते. अगर हम लोग इन चीजों के ऊपर आ जाएं तो हम लोग, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. एंड स्ट्रिपिंग ऑफ इज द मोस्ट लेयरली थिंग. मतलब हम लोगों ने, व्हाट हैज कोरोना डन टू अस, कोरोना ने हमें क्या किया है, कोरोना ने हमें रियलाइज करवाया है कि जो आप महंगे कपड़े खरीद रहे हैं इनका कोई फायदा नहीं है, आप कोई चीज नहीं बचा सकती. एक छोटा सा वायरस है और हम सब अपने एक कैद होके रह गए, तो इट डजेंट मैटर. तो हम लोगों ने अपने ऊपर इतना, जो मुझे हज ने सिखाया, जो मुझे केटू ने सिखाया, उसमें एक लर्निंग थी कि द मोर, द लाइटर यू आर, द फर्दर यू विल गो. Brilliant. तो आप इतना Brilliant. भार, सोसाइटी का प्रेशर, चीजों का प्रेशर अपने ऊपर लेके चलेंगे, आप नहीं जा पाएंगे. चैरिटी आप दिखावे के लिए करेंगे, आप दिल के लिए नहीं करेंगे, तो आपको समझ नहीं आएगी. हम लोग अफ्तारी कराते थे, मैंने एक रक्षा बनाया था दैट यूज्ड टू गिव आइसक्रीम, जो अभी हम कल से फिर शुरू कर देंगे. द अमाउंट ऑफ आइसक्रीम वी सेल इज द अमाउंट ऑफ आइसक्रीम वी गिव अवे इन द स्लम्स टू द किड्स, पीपल हु आर नॉट फास्टिंग, जस्ट लिटिल किड्स. मैं हमेशा कहता हूँ, शेल्टर होम्स का खान साहब ने इनिशिएटिव रखा. हमने, मैंने वो शायद आपको याद हो, मैंने एक बंदा था जो कि बच्चों के साथ माल रोड में मांग रहा था, जिसको उठाया था. अच्छा. तो उसकी बेस के ऊपर इमरान खान ने शेल्टर होम अनाउंस किया था. मेरी वो पिक्चर वायरल हुई, इमरान खान ट्वीटेड अबाउट इट, उसके बाद ये अनाउंस शेल्टर होम्स. तो मैं ये कहता हूँ, ये जो बच्चे मांगने वाले, जो हमारी यूथ सारी सड़कों के ऊपर बैठी हुई है, आप ये सोचें कि इन बच्चों का बचपना क्या है. डोंट गिव देम एजुकेशन, आई से उनको मत पढ़ाओ, कोई बात नहीं, एजुकेशन इज बड़ी बात की बात. आप ये सोचें, क्या आपने उनको वो बचपना दिया है जो वो डिजर्व करते हैं. उनका बचपन ही कोई नहीं है. दे डोंट हैव द चाइल्डहुड मेमोरीज, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट वुड दे बिकम. तो हम लोग वो जब आइसक्रीम बांटने जाते हैं, द स्माइल्स दैट दे हैव ऑन देयर फेसेस इज प्राइसलेस. जब हम लोग ये वाली चीजें कर रहे होते हैं, जो उनको खुशी हो रही होती है, उसकी हमें जितनी खुशी हो रही होती है, दैट इज प्राइसलेस. देन आई डिड दिस वन थिंग दैट इज, money can't buy happiness, neither can you buy a scoop of ice cream at Sweet Tooth. So हम लोग every New Year's we do this. कि for that one day you come to Sweet Tooth and you cannot buy ice cream with money. You cannot buy anything with money. What you have to do is there is a bucket of deeds जिसके अंदर I love नेकियां this लिखी one. हैं. उसके अंदर से आप वो नेकी निकालेंगे, उनमें कोई भी ऐसी नेकी नहीं है that is going to cost you. It would be something like giving a pair of shoes to a homeless, giving taking your maid out for a movie, treating your neighbor's driver with food. इस तरह की नेकियां लिखी हुई हैं, और उनके साथ बैठ के खाना. और वो नेकियां इस तरह की थी जो लोगों को महसूस करवाए कि हाउ गुड डज इट फील टू गिव अवे. अब आप ये सोचें, उसके अंदर एक डीड था कि गो एंड अप्रिशिएट योर नियरेस्ट रेस्क्यू ऑफिस एंड अप्रिशिएट देयर वर्क.
ठीक है। अब आप सोचो कि किसी कस्टमर का ना वो डीड निकला और वो रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में केक लेके चला गया, ठीक है, और उसने जाके कहा कि मैं यहाँ पे आपको ना सिर्फ अप्रिशिएट करने आया हूँ क्योंकि ये डीड था। आप ये सोचें कि वो रेस्क्यू 1122 के अंदर जो पुलिस वाले बैठे थे, दे स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि जिंदगी में कभी किसी ने आके उनको अप्रिशिएट ही नहीं किया। कैन यू इमेजिन दिस? आप अमेरिका में फायर ब्रिगेड की प्रोटोकॉल देखते हैं, जो इस तरह के रेस्क्यू ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक इज्जत होती है। हमारे यहाँ ईदी फाउंडेशन की कोई इज्जत नहीं है, हमारे यहाँ पे चिपा की कोई इज्जत नहीं है, रेस्क्यू 1122 की कभी हमने जाके उनको अप्रिशिएट नहीं किया, हमें रेस्क्यू ऑफिसर्स का नहीं पता। तो आप सोचो कि वो रेस्क्यू 1122 वाले उसी वक्त उसके पीछे पड़ गए कि हमें उधर लेके जाओ। आप सोचो कि रेस्क्यू 1122 वाले, गाजी रोड वाले, दे केम टू स्वीट टूथ लालिक चौक एंड दे हैड टीयर्स एंड दे वर सो हैप्पी कि सर आपने बड़ा काम किया। तो हम लोगों को ये नहीं पता कि हाउ गुड डज इट फील टू गिव अवे, व्हाट पुटिंग अप स्माइल्स ऑन पीपल्स फेस मीन। जब कोरोना की किटों वाली जो सी बात थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैंने कहा यार ये आइसक्रीम जितना भी पड़ा हुआ है कि फ्रीजर के पैसे हमें पड़ने हैं, मतलब अभी नहीं पता लॉकडाउन कितना लास्ट करेगा, कितनी देर रहेगा। तो माय एम्प्लॉइज वर कॉलिंग मी कि सर व्हाट शुड वी डू, आई वाज इन नथिया गली वाला स्वीट। यार ये बांट दो, सारा कुछ पिज्जे बर्गर लावे बनाओ, इसको पंच करो और सब हॉस्पिटल्स में जाके जस्ट डिस्ट्रीब्यूट इट, लेट इट बी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा यार स्टॉक खाली करो, रेनोवेशंस के ऊपर चले जाते हैं, सफाइयां करते हैं, लड़कों को इधर उधर हम लोग 50% सैलरीज के ऊपर रिटेन कर लेते हैं, जिनको करना है कुछ करके हम लोग बाद में देखेंगे क्या करना। तो आप सोचें कि जब वो सारा कुछ गया तो जिना हॉस्पिटल में मेरी एक दोस्त होती है, शी गेव मी अ कॉल कि उमर हमने पिज्जा भी खाया, हमने लावा केक भी खाया, फ्री में खाया, बहुत मजा आया। अब एक एक बंदे के ऊपर तुमने 1000-1500 लगा दिया है, तो तुम उसकी अगर हमें पीपीई सूट ले दो ना तो विल बी, हम तुम्हें दुआएं दें। तो मैंने कहा यार मतलब कोई बात नहीं, अगर किसी ने आपको एक काम कह दिया कि यार मुझे पीपीई सूट ले दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं भी फेसबुक पे गया कौन कौन बेच रहा है, मैंने पीपीई सूट देखे, अच्छा एक बंदा बेच रहा है, मैंने उसे मैसेज किया, मैंने कहा यार आई नीड 5 सूट्स। तो वो मुझे आगे से कहता है कि उमर भाई सबके लिए 3500 रुपए का है, फॉर यू आई गिव इट फॉर 2500। आई वाज लाइक फाइन, आई थॉट इट्स समथिंग, कोई बहुत कमाल की चीज होगी ना, कोई बड़ा पोर्ट का 3M का कोई जबरदस्त कोई चीज होगी और एंटी वायरस कोई चीज है ना। तो जब वो सूट आते हैं मेरे घर पे तो उनकी मैं शक्ल देख के, अंडर क्वालिटी स्टिचिंग, अब मैंने सारी जिंदगी टेक्सटाइल्स किया है तो आई नो कि व्हाट इट इज। देखा गंदी चीजें गंदी, मैंने पकड़ के, मेरा जो ड्राइवर है घर के ऊपर वो हमारा सैम्पलिंग मास्टर होता था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा खोलो यार इस पूरे गारमेंट, इसको अनस्टिच कहते हैं ना, तो ये क्या है। मैंने और दोस्त को फोन किया कि नॉन वोवन पीपी क्या चीज होती है, एंड ही टोल्ड, अब उसने मुझे बताया कि तो वही है जो अल्फता वगैरह के शॉपर हैं, जलाल सन्स के शॉपर हैं, जो उनसे ये रीयूजेबल शॉपर्स हैं, ये सारे नॉन वोवन पीपी के हैं, और ये किलो के हिसाब की आइटम होनी चाहिए। हमने पकड़ के इसकी कॉस्टिंग करना शुरू की, जब मैंने इसकी कॉस्टिंग की तो 189 रुपीज इसकी कॉस्टिंग निकल रही थी। तो मुझे फिर गुस्सा चढ़ना शुरू हुआ कि यार ये लोग क्या ये कर रहे हो हैं, क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। it felt as a responsibility. I know textiles, I know what is scaling up, I know how to mass produce. ये सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मतलब सिर्फ रिबेट बचाने के लिए एक्सपोर्ट करती थी, मतलब कई दफा हम जीरो प्रॉफिट के ऊपर काम करते रहे। तो जब आपको जिंदगियां बचाने की बारी आई है तो आप प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, आप वहां पे छक्के लगाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यू आप बस दुनिया फतेह कर लें। तो दैट फेल्ट टू मी कि इफ आई कम होम एंड माय मदर और somebody is suffering from corona, would I be able to forgive myself that I did not do anything? तो एट टाइम मुझे बड़े लोगों ने कहा कि यार बाकी अगर नहीं चैरिटी करना चाहते तुम क्यों फोर्स कर रहे हो। मैंने कहा चैरिटी नहीं है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, Responsibility. इट If इज नॉट COVID was a चैरिटी। test, maybe we failed. failed miserably यार, डॉक्टर्स ने बेचे हैं कोरोना के थ्रू, ठीक है। Oh वो my तो बड़े बड़े, God. मैंने तो अजीबो गरीब चीजें देखी है ना, मतलब मेरे Oh लिए my तो God. बहुत इनलाइटनिंग था, दो आई लव्ड इट। Hmm. मुझे द वे गॉड, मतलब आई एक्चुअली सॉ miracles happening, I saw how God really works.
how Yeah. things were. Yeah. तो मैं हमेशा लाइमलाइट से मैं थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता था कि यार आई एम डूइंग दिस फॉर द सोल पर्पस कि आई एम एबल टू सर्व एज मच एज आई कैन. आई डिड नॉट स्लीप फॉर 12 days. मतलब मेरी आधे घंटे सोता था और मैं उठ के मतलब तीसरे दिन 22 मार्च को आई केम टू लाहौर और 26 मार्च को मैंने तकरीबन 40,000 PPE सूट्स बना लिए. Fantastic. That's fantastic. All your experiences came to, use over there, and you just went and you did it. That is what I say कि मतलब God was actually empowering me with all those things. अब किसी के लिए उस टाइम पे लोग समझ रहे थे कि यार ये कैसे बनाएगा, झूठ बोल रहा है, कोई कह रहा था कोई. मैंने बना के स्वीट टूथ पे रख के अवेलेबल कर दिए, कार्टन्स के कार्टन. मैंने कहा ले what a जाओ. learning for everyone right now मार्केट in the प्राइस audience. हमने ब्रेक कर दी. मेरा मोटिव था टू ब्रेक द प्राइस ऑफ द मार्केट, नॉट कि एवरीबॉडी बाइज फ्रॉम मी. जस्ट इमेजिन कि तुम अगर 2500 का बेच रहे हो तो somebody will call you and tell you that sweet tooth के ऊपर 189 रुपीस का पड़ा हुआ है. How the hell are you giving it for 2500? तो तुम भी डरोगे. कम से बिल्कुल कम बिल्कुल. होगा. But I mean, the takeaway is that we have a responsibility, and all the entrepreneurs listening to this right now, you have a responsibility as well to think about how you can give back to your community, because when you're in that position of power or influence, or where you are earning, then you have a certain responsibility to give back to the community. देखो इन सब चीजों का आपको खुद फायदा हो रहा होगा, वो वाला फायदा आप भूल जाओ. Just forget what's the hereafter is going to be like. Just imagine I have a staff that is loyal to me just because they don't look good. Right. Just because somebody's. मैं बताता हूँ मेरा अभी तक का सबसे अच्छा एम्प्लॉय, the one that I completely मतलब उससे अच्छा एम्प्लॉय मेरे पास अपनी जिंदगी में नहीं आया. That was Waleed. He passed away last year. He was the best employee I ever had in my lifetime. Not because he was disabled. He was not disabled. He was the most abled employee that I've ever had. आप ये imagine करो कि मैंने जब disabled के interviews रखे तो he was the kid who was on the wheelchair. He couldn't speak. He had brittle bones. He was मतलब एक तरफ को tilted और वो पूरा मुंह खोल के बात नहीं कर सकता था. ठीक है. He had an electric wheelchair और वो उसके ऊपर मूव करता था and he was not able to hold things. He was not able to do anything. मैं इंटरव्यूज लेने के लिए आया हूँ तो सारे जितने भी बच्चे बैठे हुए थे उनमें से ये वाला बच्चा ना आई ओवरहर्ड हिम और ये सबको कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बॉस नहीं रखेंगे तो क्या हुआ. Wow, वो सब what an काउंट attitude. कर रहा था. he had the leader मतलब उसकी लीडर वो उसकी कैपेबिलिटीज थी. तो जब मैंने उसे इंटरव्यू किया ना तो ही वाज वेरी शार्प, लेकिन ही वाज मतलब ही हैड लिमिटेड मूव. वो उसकी मूवमेंट बहुत लिमिटेड थी. तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा ठीक है वलीद तो आप क्या करना चाहते हैं, मतलब ठीक है आई विल हायर यू. मैंने उसकी जॉब उसकी जेडी ये थी कि तुमने हर चीज को सुपरवाइज करना है, देखना है, एंड यू विल बी माय आईज एट स्वीट टूथ एंड यू विल टेल मी व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है. और तुमने बताना है कि कौन टाइम क्या हो क्या रहा है. ठीक है. तो लाइक आई विल डू इट. आप सोचें कि ही वाज डूइंग द जॉब एंड ही कॉल्स मी वंस कि बॉस सेल्स आर लो. अब ये वाला टाइम था कि जब एकदम सेल्स ओवरऑल गिरी थी, तो इसने मुझे किया कि सर सेल्स आर लो तो बॉस हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट शुरू कर दें. मैंने कहा वलीद असल में लाहौर में ब्रेकफास्ट वाला ट्रेंड सिर्फ वीकेंड्स के ऊपर है, तो उसकी वजह से हमें एक शिफ्ट ऐड करनी पड़ेगी और हमें सुबह से खोलना पड़ेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा. आप सोचें दिस हैज नेवर बीन डन. मैंने उसे जब ये कहा ना तो आगे से मुझे कहता है कि बॉस आप फिक्र ना करें, मैंने सबसे बात कर ली है, हम लोग सारे आपस में इसी स्टाफ में मैनेज करेंगे और आपको एक बंदा भी ऐड नहीं करना. यार आई वाज सो हैप्पी कि कभी भी किसी चाहे महंगा एम्प्लॉय हो या सस्ता एम्प्लॉय हो, कभी उसने ये नहीं सोचा कि हम ज्यादा काम करके इदारे को ज्यादा फायदा दें. बट ही वाज थिंकिंग फॉर मी कि एक शिफ्ट ऐड करें, हम लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे. फिर एक दफा मैंने एक स्वीपर रखा. अब वो मैंने रखा, स्वीपर हमारा कहीं भाग गया एम मालूम वाली ब्रांच का, तो इसने अपने घर के स्वीपर को स्वीट पे लगवा दिया ना कि इधर उधर से पता करा के वो लगवा के. अब इसने मुझे कहा कि आप इसका इंटरव्यू ले लें. मैंने कहा वलीद आई एम बिजी तो मैं शायद ना लूं. तो उसने कहा नहीं नहीं प्लीज आप आगे इसका इंटरव्यू जरूर लीजिएगा. मैं बहरहाल आ गया. अब मैं उसका इंटरव्यू लिया तो एक स्वीपर का इंटरव्यू को मुश्किल इंटरव्यू तो नहीं होता.
बड़ा सिंपल होता है कि सफाई आती है, मॉप लगाना आता है, बस जस्ट गेट डन। तो मैंने उसका इंटरव्यू लिया, तो साथ ही मुझे आके कहता है कि बॉस इस अपना उसको साइड पे करके कहता है कि मेरे से एक सेकंड बात कर लें। कहता है कि सर इसको क्या सैलरी बता। मैंने कहा यार जो हम सबको देते हैं 18,000 रुपीज। कहते हैं ये ना सर पहले 10,000 पे काम कर रहा था, हम इसको ना 12,000 सैलरी बताएंगे और हम इसको 6,000 रुपीज बोनस देंगे। हम देंगे इसको 18 ही, लेकिन विल गिव 6,000 एज अ बोनस, ताकि वो और मोटिवेटेड। Yeah, just imagine the kind of kid Good thinking. he was. He thinks. Oh, I'm so sorry to hear that he passed. तो आप सोचेंगे ये लोग फिर बाकियों को देख के शर्म आ रही होती है कि somebody who cannot even move is moving so many things. Man. So this matters. तो एक बड़ा मतलब आप इनको इसलिए हायर नहीं करें कि आप कोई एहसान कर रहे हैं. I never made any one of them feel कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ. That is what they deserve, and I kid you not, they give you back many folds. Huge learning. And अगर rapid fire round में ये question होता best employee, तो उसका आंसर हमें मिल चुका है. Next question, rapid fire round, is best book. Any book you'd like to recommend? Charlie and the Chocolate Factory. I like it. I like it. अच्छा, best No, no. movie these days, favorite movie. यार इंसेप्शन मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, confusing movie. Yes. अच्छा, ये आपसे ये सवाल पूछना तो जुर्म होना चाहिए. फेवरेट फूड? Every single अंडा शामी तो मेरा बेस्ट है ना. I अच्छा love it. अच्छा, फेवरेट फूड एंड स्वीट टूथ? यार I can live on either death by chocolate और very very strawberry. इन दोनों के ऊपर मैं जिंदा रह सकता हूँ. वाओ, मैं आ रहा हूँ ट्राई करने. अच्छा, योर बेस्ट मिस्टेक? All the mistakes were best. All मतलब of them, huh? all of them were the best mistakes. Your pieces of the puzzle. I love them. अच्छा, If I didn't favorite make mistakes, I won't be over. हाँ. favorite song? आज दिल दुखा है. वाह, मैंने नहीं सुना हुआ. ओ आतिफ वाला. अच्छा अच्छा, आतिफ. मैं अभी लिख लेता हूँ और मैं बाद में सुन लूंगा. ठीक हो गया. Okay, next question is most interesting person you follow online. Online. Nobody. Nobody. The most interesting person you follow, your mentor would be your father. Yeah. Anyone else other than that you'd like to name? Huh? Nope. Not a single person. Okay. Biggest my mistake? father was the type of guy, if somebody is outside जिसको कपड़े चाहिए, मेरा बाप अपना wardrobe खाली करके दे देगा. वो दे देता. So he was that sort. I'm nowhere close to it. That is amazing. We need mentors like that. Umar, जो आपने mentorship की बात की, that's something we try to do at the NIC, because from this conversation also there's so much learning कि mentorship और आपका जो वो शागिर्द वाली relationship होती है आपके उस्ताद के साथ, is very important. आप गलतियां कम करते हैं. Yeah. आप जल्दी गलतियां कर लेंगे. You learn fast, fail fast, learn fast. What is the biggest mistake a leader can make, in your opinion? Ego, and second one, he knows everything. You don't know nothing. Jon Snow. You know nothing. You don't know everything. I like You're it. always learning. You're always learning. So the day you'll crash, the day you think you know it all. If you were 20 again, you would do the same thing again. I like it. Okay. You would hate to? I would hate to just sit at home and do nothing. Okay. Or be in the textile office all day and not realizing your full potential as a people person. Oh, you need to move. Yeah. So the biggest lesson your mentor, your father gave you was to give back. I wish I was old enough to actually be taught by my father, but I've been taught by the stories that how he was.
So you cannot even imagine if he was there to teach me, it would have been 100 times from now. Amazing. What? So I Yeah. never got But that lesson your mom gave you when you were just a kid and you started shaking hands with every that was person you met, that was pivotal. That was pivotal, Umar. just imagine me entering a wedding hall. शादी के ऊपर मैं जनरल हाई नहीं कर सकता. मैं तो आपको असेंबली पे इमेजिन कर रहा हूँ, आप जाके You पूरे cannot लाइन imagine. से मिल रहे हैं. मैं Amazing. पागल हो जाता. तो मैं एक शादी के अंदर जनरल हाई 50 लोग खड़े हैं, मुझे हर एक से हाथ मिलाना. अभी तो Amazing. कोरोना के लिए बहुत टफ टाइम है, मतलब हाथ ना मिलाना मुझे, आई गो क्रेजी, मुझे आदत है. Acha, I am afraid of. Do you have like a fear like of spiders or heights or the dark or something? I've always done things that scare me. Okay. तो मैंने स्काई डाइव से लेके K2 से लेके मैंने हर हरकत कर ली है. मैंने दोनों शोल्डर ब्रोकन है. इसके अंदर अभी भी देयर इज अ 5-inch रॉड. तो एडवेंचर का शौक है. Quite an adventure shauकीन you are. Yes, we'll have to do another session on that. लाइफ इज एडवेंचर. अब कोई भी नॉर्थ में, अब तुम सोचो कि जहां तक हुंजा खोलने की बात है, मैं उसमें तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ. हुंजा में खोलना मुश्किल है, अमेरिका में खोलना आसान. उधर बिजली नहीं है, चीजें नहीं है. अगर हम लोग वही टेस्ट हुंजा में दे सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आई हैव डन इट. कहीं भी दे सकते हैं हम वो कहीं भी एक्सपीरियंस. दे सकते हैं. तो मैंने बहुत टफ देख लिया है. अब मेरे लिए एक्सपेंशन नीचे कोई मसला ही नहीं. और उसकी Is एक Hunza operational? Because I can't wait to visit. I've never been to Hunza. फुली ऑपरेशनल. अभी मेरी वो वीडियो वायरल हुई है यार. मुझे इतने अच्छा. फोन आ, अभी एयरप्लेन मोड पे जाना पड़ा है इस तरह से. अच्छा, ये मुझे भेजनी पड़ेगी हमारे मैंने लिसनर्स अपना को. फायदा है. ये भी एक और चीज है. मतलब मैं कभी भी यू कॉल, मेरे दोस्त कई दफा होता है कि कॉल करते हैं और वो एक मिस कॉल के ऊपर ना फोन कट जाता है. वो मुझे समझ आ जाती है कि उसने स्वीट टूथ का नंबर मिलाया है और वो मिल मेरा गया है. और उसने देखा शिट ये तो उमर का नंबर है और काट दिया. ठीक है. तो आई नेवर टेल एनीबॉडी कि मैं अपना नंबर भी रखा होता है. और सारे कहते हैं कि इतनी ज्यादा आउटलेट्स हैं, हाउ डू यू मैनेज. आई लव सर्विंग. तो आप में जब ईगो ही नहीं होगी तो मैं मैनेजर बन के बात करता हूँ. मुझे पता होता है कि मेरे स्वीट पे कौन कस्टमर आ रहा है, किसके साथ मसला हो रहा है, किसको क्या हो रहा है. तो एवरी टाइम somebody calls they can talk to me directly. और मुझे पता होता है कि this is what is happening. So we have some just a couple of questions, and I'm going to like to start with this one. That being an extrovert, do you sometimes feel frustrated or hurt by people? Maybe sometimes. How do you feel if you feel like people are judging you or being mean? देखो मैंने अभी यही बात की है कि सबसे पहले स्ट्रिप ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी के प्रेशर्स एंड स्ट्रिप ऑफ द बर्डन दैट यू कैरी के व्हाट पीपल थिंक. ठीक है. मतलब आई डोंट माइंड, आई डोंट हैव अ कार. आई सोल्ड माय कार ऑफ 2 years बैक. मैं जब मॉल 1 वाला स्वीट बन रहा था तो मैं यहाँ पे जाता था. तो हम लोग पेंट कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, मैं सबके साथ बैठ रहा था. तो जितने भी वहां पे गार्ड थे ना, दे यूज्ड टू से कि ये पता नहीं किसको इन्होंने जगह दे दी है ना, कि ये तो बिल्कुल ही कोई फकीर आदमी है ना, फटे हुए कपड़ों में भी आ रहा है, चीजें कर रहे हैं और बैठ के दाल चावल खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. तो सब जज कर रहे थे. मेरे पास मेरा एम्प्लॉई आगे कहते हैं कि बॉस आप थोड़ा ख्याल रखा करें, थोड़ा लेवल को अप करें. सारे ऑडीज के ऊपर आते हैं और आपके पास गाड़ी भी नहीं होती, और आप कभी उबर कर रहे हैं, कभी करीम कर रहे हैं, कभी साइकिल पे आ रहे हैं, कभी अपनी माँ की 2005 सिविक पे आ रहे हैं. उसके ऊपर मुझे गालियां. तो मैंने गाड़ी ही भेज दी कि मुझे कोई वो ही ना हो ना. अब आप सोचो कि अगर आप ये वाले प्रेशर लोगे इन चीजों के, तो आप कहीं पे भी नहीं जा पाएंगे. पहली बात पीयर प्रेशर छोड़ दो आप लोगों के लिए. और सबसे ज्यादा आपको मजा ही तब आएगा कि आपको पता है कि आपके पास क्या है, आपको पता है आप कितने अमीर हैं, आपको पता है कि आपने और क्या करना है. लोगों को अगर आप बता देंगे तो फिर तो आप मजा ही नहीं आएगा ना. लोगों को तो पता ही नहीं होना चाहिए कि आप कौन, आपकी वर्थ क्या है, चीजें क्या है. पहली चीज. दूसरी चीज ये कि आप, क्वेश्चन क्या था पूरा? क्वेश्चन था कि मतलब अगर आपके साथ कोई एक्सट्रोवर्ट होने की वजह से आपको हर्ट फील कराए. देखो एक्सट्रोवर्ट होने से या आप मोहब्बत दे रहे हैं, इसके अंदर एक्सट्रोवर्ट तो नहीं है. दूसरी चीज, कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करो. अगर किसी को कुछ दो तो डोंट एक्सपेक्ट इट इन रिटर्न. अगर दे रहे हो तो फिर ये सोचो कि दे दिया है, वो वापस नहीं आएगा. आ गया तो बोनस है, इट्स ओके.
लेकिन आप किसी को मिलना इज नॉट एक्सट्रोवर्ट, किसी को मिलना, सलाम करना, हाय बोलना, हम लोग इतने फजूल लोग हो चुके हुए हैं। हम लोग जहाज में, आई एम श्योर आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप जहाज में बैठते हैं आपको अपने हमसाये का नाम नहीं पता होता, आप हाय नहीं बोलते। आपके साथ गोरा बैठेगा, वो आपको हाय भी बोलेगा, वो आपसे बात भी करेगा। पिछले दिनों मेरी एक दोस्त आई थी लॉस वेगस से, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज ट्रैवलिंग आउटसाइड ऑफ द यूएस एंड शी केम डायरेक्टली टू पाकिस्तान। ठीक है, अब वो पाकिस्तान मॉल पर बाहर बैठी हुई है और वहां पे हर बंदा गुजरते हुए उसको देख रहा है। अब गोरे की आदत है, उसकी तरफ जो भी देखते हैं ना, आप उसको वो हाय कह देते हैं, देख के स्माइल करते हैं, हाय वो करते हैं, स्माइल या करके हाय बोलती थी। और जो भी बंदा सामने से आ रहा होता था ना, उसको लगता था कि चोर पकड़ा गया, और ओह वो माय एकदम गॉड, ऐसे ऐसे हो। व्हाट हैपेंस, मैंने उसे समझाया कि हम लोगों को डिफरेंट हाई की थिंकिंग, आदत ही नहीं। डिफरेंट बट थिंकिंग। दिस इज सो सैड कि हम लोगों को हाई की आदत नहीं है। आपको सलाम लेनी चाहिए हर किसी से। दिस इज नॉट एक्सट्रोवर्ट, आई एम टेलिंग यू, दिस विल एम्पावर यू। ये कनेक्शन बड़ा वो होता है। और आप मतलब अगर आप एक्सपेक्टेशन ही कुछ नहीं है तो सब कुछ ठीक है। आई नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, इट्स परफेक्टली फाइन। एक्सपेक्टेशन किल Acha, कर। so we have some people in the audience, and I'll take one or two questions on voice. So, Maria, if you're raising your hand, I'm going to allow you to talk. If you have a question, you can quickly ask it, okay? Make it brief. So, Maria, would you like to say something? Hello. All right, okay. Moving on to the next. Okay, आवाज Hamid. नहीं आ रही है। Hamid. All right, Hamid, we can't hear you. Try again. अभी आवाज आ रही? जी आ रही है, हेलो। बोले हामिद। जी जी जी, अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था कि जिस तरह आपने ये नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर का जिस तरह आप इस तरह शेयर कर रहे हैं एक्सपर्टीज़ वगैरह का, और इस तरह जो इंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, इसमें कोई ऐसा भी वो है जिस तरह आपके एक्सपीरियंस में के मेंटर्स जो हैं वो इस तरह के जो नए स्टार्टअप्स वगैरह हैं इनके साथ मिलके और जो है उसमें मेंटरशिप में, और साथ साथ कुछ कि वो सस्टेन होने तक फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हवाले से भी उनकी वो कर सकें? बिल्कुल ठीक है हामिद, so I think I can answer that question better, and you could reach out to me via email. I'll share my email as well. The NIC, यहाँ पे हम बिल्कुल entrepreneurs को देते हैं, mentorship भी देते हैं, और उनको cohort में induct कर लेते हैं उनके startup को, और फिर उनको हम सारा mentorship और उनको help करते हैं. Maria, do you want to try again? Right, okay, it's not working. Let's take another question. So as a photographer, how can a photography business give back? मुझसे पूछ रहे हो? मैं I've never hired a photographer for Sweet Tooth. सारी अच्छा, फोटोग्राफी मेरी होती है, सारी वीडियोग्राफी मेरी अपनी है। गलत बंदे ड्रोन से क्वेश्चन पूछा है। इतना तंग करते हैं फोटोग्राफर जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अगर कोई अच्छा फोटोग्राफर है जो असल में पैशनेटली काम करना चाहते हैं, हमारे मसला बहुत बड़ा है यार। हम लोग काम को डिले करते हैं, लेजी हैं चीजें। अगर तुम ये सारा कुछ ठीक कर लो, मैं हायर कर। बिल्कुल ठीक है। So social entrepreneurship में generating profit and giving back, is that a difficult thing to do, or is it possible? What's the right way to go about it? That is a very simple, बहुत आसान है यार। मतलब आई ऑलवेज से, मुझे बिरयानी खिलाने का शौक नहीं है। लोगों को एम्पावर करें, और सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल होना चाहिए जब भी आप इस तरह का करें। हम लोगों ने केक्स नहीं बनाते। अभी मेरा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, दैट इज बाय द नेम स्वीट लिटिल थिंग्स। तो इस रमजान में मैं उसके ऊपर काम करने लगा हूँ। वो बहुत डिफरेंट और बहुत मजेदार प्रोजेक्ट, उसके ऊपर बहुत मजा है। दैट इज एक्चुअली हर अर्बन के साथ एक स्लम अटैच, विद एवरी अर्बन देयर इज अ स्लम। तो अभी तक जब भी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात होती है तो हम लोग स्टिचिंग मशीन्स की बात करते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एम्पावर पीपल इन द स्लम्स टू बेक द केक्स। स्वीट लिटिल थिंग्स इज गोइंग टू प्रोवाइड देम विद द प्रीमिक्सेस, जो कि मैं इंपोर्ट खुद करता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि क्वालिटी स्टैंडर्डाइज हो गई, उनको किचन हम बना के देंगे छोटा सा, एंड दे विल बेक, and they'll bake for everyone. We'll empower them
तो जो बीबियां, महंगी बीबियां 2-2 हजार रुपए का पाउंड केक बेचती हैं, उसकी प्राइस में 300 रुपए पाउंड पे ले, ठीक है, एंड विल एम्पावर देम। फिर बट दिस उनको इज अ सोच, ब्यूटीफुल, ये एक बहुत पावरफुल चीज हो सकती है। मुझे याद आता है उमर, व्हेन आई वाज अ किड कराची में, तो हमारे घर के पास एक झुग्गी थी। तो माय मॉम यूज्ड टू कॉल द बच्चीज, जो छोटी छोटी लड़कियां थी, उनको वो नहलाती थी, उनको पढ़ाती थी, उनको ये वो। एंड इट वाज अ लर्निंग फॉर मी कि अगर हम इस ग्राउंड लेवल पे, इफ योर हाउस सपोर्ट्स अनदर हाउस, you know, then we can all work together to change the faith of the nation. यार ये ओवरनाइट चीजें चेंज हो सकती हैं अगर हम लोग इंसान बन जाए। आप Wow. अपने इर्द देखें ना, अभी मुझे रैंडम कॉल्स आती हैं ज़कात की चीजों की, मैं कहता हूँ यार हमारे अपने एम्प्लॉइज इतने ज्यादा हैं, हम उनको पहले देना चाहिए। Hmm. अगर Hmm. आप बिल्कुल असूलों के मुताबिक चलें, आप अपने रिश्तेदारों में देखें कि कोई कमजोर है, उसको सपोर्ट करें, अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप कुछ भी ना करें यार, आप सफाई करना शुरू कर दें कि मेरे घर के सामने सब कुछ साफ, सब अपने घर के सामने से सब साफ कर लेंगे ना, तो आपका पूरा एरिया साफ हो जाए। Hmm. Hmm. हम बिल्कुल लोग सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम नहीं। लोग बड़ी लंबी डिबेट। Lot of things. Umar, would you like to leave a final note for our listeners today? यार the final note that I would want to say is, पहली बात तो never let ego come into your way even if you're successful, और एक false ego भी है, वो भी सोसाइटी में हमारे पास बहुत ज्यादा, not saying that you people have, but this will stop you from progressing in your life. So you need to be kind, you need to be humble, you need to be down on the floor. मुझे ऐसे ऐसे कमाल आइडियाज ऐसे ऐसे इंसानों ने दिए हैं जिनसे आप, जो जमादार हैं या जो सफाई वाले हैं, जो गार्ड हैं, मैं अगर किसी स्ट्रीट पे जाता हूँ, मैं वहां पे गार्डों से लेके हर किसी से मिलता हूँ और उनके साथ खड़े होके बात करता हूँ। मुझे ये पता चलता है कि हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है जो अच्छा कर रहा है। तो इन चीजों से आपको ही वापस फायदा होगा। मुझे ये पता है, मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हमसाये का सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे मोहब्बत से मिलता हूँ, वो मेरी दुकान का भी ख्याल रखता है। तो Wow. मुझे उसको तनख्वाह देने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मोहब्बत देने की जरूरत है। तो आप ये सोचें कि गिविंग लव इज द लीस्ट दैट यू कैन डू, दैट इज द मोस्ट दैट यू कैन अर्न, एंड once you're gone from this world, you need to be sure that you've made a mark in something that is going to live greater than you. तो आपकी तो जिंदगी बहुत छोटी है। दूसरा, ओवरनाइट सक्सेस से बचो। अगर आप ओवरनाइट सक्सेसफुल होते हैं तो आप गलतियां नहीं सीख पाते, आप ग्राउंड के ऊपर आके काम करेंगे तो यू लर्न अ लॉट। और दूसरी चीज ये कि कभी डरना नहीं है, खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। तो चीज ये है कि जब भी कोई टफ टाइम आपके ऊपर आता है, दिस इज फॉर यू टू लर्न। तो हर सब्जी के अंदर वेंचर्स आपके खत्म भी होंगे। मैं 3 दफा मैंने रॉक बॉटम देखा है। जब मैंने पहली बार टी शर्टें बहुत ज्यादा बना दी थी, आई वाज आउट ऑफ कैश। दूसरी दफा टेक्सटाइल के अंदर मेरी शिपमेंट रिजेक्ट हुई थी, आई वाज आउट ऑफ कैश। थर्ड टाइम स्वीट टूथ के टाइम के ऊपर, मी एंड माय ब्रदर गॉट सेपरेटेड, आई हैड टू पे हिम एवरी सिंगल पेनी दैट आई हैड, आई वाज आउट ऑफ कैश। So 3 times I have plunged on the ground without money. And I survived just because I had no extra layer of ego or extra layer of plastic on me that would have stopped me from surviving. So I'm happy without a car, I'm happy on a bike, I'm happy with all the outlets. मतलब अल्लाह का शुक्र, and आप अल्लाह मियाँ टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर वर्क। अगर आप हर एक के साथ एक निकी अटैच कर देंगे और उसको क्रिएटिवली करेंगे तो आप आगे ही आगे। अभी मुझे सारे कहते हैं कि एक सबसे मजे की बात बताता हूँ, स्वीट टूथ का खाना क्रिएटिव क्यों है। आज मैं आपको सबसे बड़ी उनकी बात बताने लगा हूँ, वो ये है कि आप जब एक रेगुलर चीज हर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो आपने एक टेस्ट को बेंचमार्क कर लिया। ऐसे ही है, सबसे अच्छी ब्राउनी है क्योंकि वो रेगुलर ब्राउनी है। तो जब आप बिल्कुल ही एक नई चीज क्रिएट करेंगे तो उसको किसी ने टेस्ट नहीं किया, there is no benchmark for the customer. So blue ocean strategy honi chahiye. And it's tasty. If it is good, it's tasty, nobody would be able to benchmark. बात समझ रहे? तो creative thinking और
doing it in a different way will always uplift you. और दिमाग खोलो और डरना बंद करो. Zabardast. Amazing, amazing. Such a learning session for me also, Umar. You are a true mentor, my friend, and the impact you're making on a cultural, society level is very important. And I believe that all our listeners feel that too. And I personally am inspired to do more in my local community after hearing you speak today. Umar, such a pleasure to have you on the show. And I look forward to picking your brains off the call also. And Always. if any of our listeners have any questions to share, and I'll have them sent to Umar. And yeah, this video will be up on YouTube. So anyone who joined in late, you can watch it there later as well. Thank you so much. Over and out from us over here at the NIC in Islamabad and Umar in Lahore. Have a great evening, Umar, and Ramzan Mubarak again. सबको रमजान मुबारक and thank you. Thank you so Allah. much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.